जो पैशंस हैं उन्होंने क्या प्रोसीजर्स अपनाए वो सारा कुछ जान सकते हैं आप. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट इट. इट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक स्टेट. ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट अ कल्चर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड कश्मीर? कितने? हाँ, वैसे भी बहुत लोग. ठीक, तो वो उसके बारे में जानिए. और अभी जब आएंगे वो, तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी यू, मतलब जैसा उन्होंने कहा इन द कैफेटेरिया. अभी खाने के बाद वो साथ में जाएंगे. As soon as the guest will come, or as soon as he starts, or we start the program, I have given a paper to read out about him. But going through this short introduction, I would like to convey in one or two sentences what are we going to see in him. What is his heaven on earth? But if we want to analyze his span of life and his modus operandi, we will find he himself is a confluence of technology, administration, and culture. Opportunity from north, right from north, top, and that particular place which has carved a niche for itself in the history of ancient India, modern India. So let us conduct ourselves in such a way before this guest that he gets an impression we want to receive something, we want to learn something. How does his aura impact each one of us? That will be the very magical impact of such a personality and a person who is down to earth. Thank you. The chief guest, Shri Talat Parvez Iqbal Rohela, STEM faculty members, dear students and members of Team VVRS. Once again, a very good evening to all. It is a moment of great pride for Vidya Vihar Residential School to welcome Sri Rohela, an accomplished officer of the Indian Administrative Service 2010 batch, who has dedicated his life to public service with distinction and dignity. 1966, and hailing from Jammu and Kashmir, he pursued a Bachelor of Engineering in Electronics and Communication before choosing the noble path of governance. And administrative excellence makes him an inspiring example for every student aspiring to build a meaningful and impactful career. Over the years, Sri Rohela has served in several key positions within the Jammu and Kashmir administration. His roles have included the government has placed in his leadership, integrity and vision. His work embodies the highest ideals of public administration: commitment, clarity, empathy, and the ability to transform policy into real societal change. Students, today you have the privilege of listening to someone who has lived a journey that beautifully combines academic excellence, professional discipline, and a deep sense of service to the nation. His presence here is more than an honor.
It is an opportunity for each one of us to learn, question, reflect, and draw inspiration. Whether you wish to pursue engineering, civil services, research, entrepreneurship, or any other path, the life and work of Sri Rohila remind us that success is built on sincerity of purpose, hard work, resilience, and strong values. I must take a moment to express our sincere gratitude to Sri Dheeraj Kumar ji, DPO Manrega, whose support and felicitation made this visit possible. We truly appreciate his effort and goodwill towards our institution, sir. On behalf of the entire Vidya Vihar family, our management, teachers, staff, and students, I extend a warm and heartfelt welcome to Sri Talak Parvez Rohila, sir. We are truly privileged to have you with us this evening, and we look forward to your words of wisdom and inspiration. Thank you, sir. Thank you once again. Now I request, sir, please. Definitely, sir. Thank you for introducing my profile to the youngsters. A very good evening to all of you. It's actually very heartening to be part of this today's evening and seeing the bright faces of the students of this institution. It's a privilege to be with you and know about your learning curves. I was delighted to find that Purnia has a school which is residential, because having a residential school was aspiration for me to be one of the students in such a school. But I didn't find this chance, because in our state of Jammu and Kashmir, we don't have a residential school really of this nature. Other states do have, but Bihar also doesn't have it. Now, I must congratulate the people who have conceived and have been running this institution. I have learned that since 29 years, and 20 is a big period, and all the value system must have crystallized to shape your future. So I would like to know more from you rather than speaking on this occasion. I have no plan. Yesterday evening only I thought of visiting some place because I had some time in today evening. So there were some very few options, but this was the best option I could choose from. So be with you people for some moments and share some of the ideas, and you can also be sharing. To just break the ice, I can talk on varied subjects because I happen to be a member of civil service. And civil service encompasses all the type of departments and public service or knowledge centers we come across. And we come to know different aspects, how to lead a life or how to deal for public good. So whatever you could ask and interact on the subject, whatever knowledge I must have gathered over my career of 30 years of civil service, I'll be sharing gladly with you. So to begin with, just I'll quote today's thought with you. I heard a story only 2 days back regarding how this ecosystem of our planet has been planned by the Almighty. And the nature has blessed this planet with a wonderful balance of the species. What happened actually in the story? I should speak in English or I should speak in both languages? Both languages, okay. So ऐसा हुआ था, मैं कहीं कहीं उर्दू भी बोलूँगा, right? ठीक है, उर्दू मैं हिंदी इतनी शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ, because our state is a Urdu speaking state and I have been educated on Urdu medium as well. So अमेरिका का नाम सुना है कई लोगों ने? अमेरिका तो बहुत बड़ी कंट्री है, सुना है कई लोगों ने? येलोस्टोन पार्क के बारे में सुना है किसी ने? येलोस्टोन पार्क, नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, येलोस्टोन पार्क, कितने लोगों ने सुन लिया है उसका नाम? वेरी नाइस, गुड. तो येलोस्टोन पार्क में इन 1926 देयर वेयर, तब एनवायरनमेंट का इतना रुझान नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि एनवायरनमेंट कैसे
बैलेंस करता है अपना आपको, या इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, पीपल वेर नॉट मच अवेयर। तो हुआ क्या था कि हंटिंग वॉज ए वेरी कॉमन थिंग टू हैपन इन अक्रॉस द ग्लोब। हर जगह, यहाँ भी हंटिंग हुआ होगा, यहाँ भी मैंने पूर्णिया में जब मैं आया तो मुझे बताया गया यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, ये ऑलमोस्ट एक वन था, वन जैसे होता है वैसा था, यहाँ पेड़ ही पेड़ थे। अब आज वो पेड़ नहीं दिखते हमें, डेवलपमेंट डे और बाकी डेवलपमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया और ट्रीज कट गए हैं, मगर तो भी स्टिल इट्स ग्रीनर। तो येलोस्टोन पार्क भी कुछ ऐसा ही ग्रीन एरिया था, वाइल्ड एरिया। तो उसमें सारी स्पीशीज मिलजुल के रहती थी, उसमें वुल्व्स भी थे, उसमें डेयर भी थे, उसमें चिड़िया परिंदे भी थे, कुछ वॉल्चर्स भी थे, कुछ रोडेंट्स भी थे, और बीच में से रिवर फ्लो करता था। येलोस्टोन का जो नेशनल पार्क है उसके बीच में रिवर। ये देखा गया कि 1926 के जस्ट 5 सालों में रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया, वो वहाँ से फ्लो नहीं करने लगा, कहीं और से रिवर का कोर्स बनने लगा। जो रेन गिरती है तो वो रिवर का कोर्स लेता, जैसे आपका यहाँ पे सोहारा रिवर है, शायद क्या नाम बताया था, सौरा रिवर, जैसे इसके बीच में से जाता है, समझ लीजिए आपका कुछ 10 साल के बाद रिवर कहीं और से फ्लो करना शुरू, तो आप हैरान हो जाओगे कि व्हाई हैज़ रिवर चेंज द कोर्स, रास्ता क्यों बदल दिया रिवर ने। तो पता ये लगा रिसर्चर्स के थ्रू हुआ, 1926 के बाद जो रिसर्च हुआ, कई देर के बाद हुआ, 40-50 ईयर्स के बाद हुआ, कि क्या हुआ मामला, क्यों रिसर्च ये फाइंड आउट किया, क्या वजह हुई। तो उसने देखा कि एक स्पीशीज़ को हंट किया गया था, एक स्पीशीज़ हंटर्स ने गोलियों से या फर के लिए या अपने स्पोर्ट के लिए, अपने एडवेंचर के लिए एक स्पीशीज़ को मारना शुरू किया। वो कौन सा स्पीशीज़ था? ग्रे वुल्व्स। ये एक्चुअल स्टोरी हुआ है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, इस कहानी से आप केस स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। तो जो ग्रे वुल्व्स था उसको किल करना शुरू कर दिया हंटर्स ने, और ग्रे वुल्व्स 1926 तक सारे ग्रे वुल्व्स मर गए और उनका फर और जैकेट बन गया, और वो बड़ा कॉस्टली बिका। हुआ क्या, जब ग्रे वुल्व्स खत्म हो गए तो वो ग्रे वुल्व्स खाता किनको था? वो खाता था एलेक्स और वहाँ के डेयर को। जब एलेक्स और डेयर को खाने वाला कोई मिला नहीं तो वो उनकी पॉपुलेशन क्या हुई? बढ़ती गई, एलेक्स भी बढ़ते गए, डेयर भी बढ़ता गया। उन्होंने क्या किया, जब बढ़ा पॉपुलेशन तो क्या किया, खाना था उन्होंने कुछ ना कुछ, तो उन्होंने विल्लो ट्रीज थे वहाँ पे, तो विल्लो ट्रीज को खाना शुरू कर दिया, और जो बाकी पेड़ पौधे थे वो भी खाना शुरू कर दिया। तो एक ऐसा वक्त आ गया आफ्टर 5 ईयर्स, वो वेजिटेशन कम होती गई, पेड़ सूखते गए, जब पत्ते लगते नहीं थे तो पेड़ सूखने गए, और पेड़ सूखने जब लगे तो पेड़ों पे कौन रहते थे? परिंदे रहते थे। परिंदों को अपना चारा नहीं मिला, खुराक नहीं मिली। जब परिंदों को अपनी खुराक नहीं मिली तो परिंदे भी अपना कोर्स बदल गए, वो कहीं कहीं और दूसरी डायरेक्शन में निकल गए। जब परिंदे कहीं और डायरेक्शन में निकल गए तो क्या हुआ, उसका जो बीज बनता था वो जगह जगह गिराया नहीं उन्होंने, तो नए पौधे नहीं बने, नया ग्रासलैंड नहीं बना। जब नया ग्रासलैंड नहीं बना तो क्या हुआ, वो जो कीड़े मकोड़े थे वो नहीं बने। जो कीड़े मकोड़े नहीं बने तो क्या हुआ, जो बाकी परिंदे कीड़े मकोड़े खाते थे वो भी वो एक्सटिंक्ट होने लगे, और उन्होंने भी अपना कोर्स बदल दिया। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, वुल्फ निकल गए, एलेक्स और डेयर बढ़ते गए, और जो परिंदे थे वो निकल गए, और जो वो खाते थे वल्चर्स वो भी खत्म हो गए। एक वक्त आया कि वेजिटेशन खत्म हो गया, ट्री खत्म हो गए, तो वो फिर फाके जो उनका जो डेयर थे या जो एलेक्स थे वो भूख से मरने लगे। वो भूख से मरते मरते कम हो गई पॉपुलेशन। जब उनकी पॉपुलेशन कम होती है, पेड़ खत्म हो गए, तो प्रेसिपिटेशन कम हो गया। प्रेसिपिटेशन समझते हो ना आप लोग, जब बारिश होती है प्रेसिपिटेशन होता है, तो प्रेसिपिटेशन कम हो गया तो और पौधे कम हो गए। तो जो उनके ऊपर वीवर बर्ड रहते थे, वीवर बर्ड जो होते वो अपने डैम्स बना लेते थे, जहाँ पे अपने बच्चे देते डैम। जब डैम नहीं बनता तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं बनता रहा, तो रिवर्स के बेड नहीं बने। जब रिवर्स के बेड नहीं बने, जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनको अपना हैचिंग का एनवायरनमेंट नहीं मिला, कछुए को अंडे डालने की जगह नहीं मिली, दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल को अपने ब्रीडिंग का टाइम नहीं मिला, ब्रीडिंग का स्पेस नहीं मिला, तो वो एक्वाटिक एनिमल भी आस्ता आस्ता खत्म होने लगे। तो रिवर बेड जो है वो भरने लगा। वो जब रेन आती थी तो प्लांट्स रोकते नहीं थे मिट्टी को, और बाकी भी कुछ, तो सारा रिवर बढ़ने लगा। जब रिवर बढ़ गया तो रिवर का अल्टीमेट जो पानी आता था, इट स्टार्टेड फ्लोइंग द अदर वे, तो रिवर कोर्स गॉट चेंज्ड। तो व्हाट हैपेंड, एक वुल्फ को मारने से, वुल्फ अदरवाइज किसी काम नहीं आ रहा था, वो सिर्फ खा ही रहा था, भेड़ बकरियों को खा रहा था और किसी काम नहीं आ रहा था, उसको हमने मारा, इंसान ने उसको हंट किया और मार दिया। तो क्या हुआ, इसकी स्पीशीज कास्केडिंग इफेक्ट में वैनिश होते गए। वैनिश होने से क्या हुआ, पूरा एनवायरनमेंट ही बदल गया। जब ये बदल गया एनवायरनमेंट तो लोगों ने कहा हुआ क्या, ऐसा क्या किया जाए।
फिर 1995 में जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश होने लगे, पीपल अवेयर हुए, अगेन द वुल्फ वॉज इंट्रोड्यूस्ड, द ग्रे वुल्फ वॉज इंट्रोड्यूस, एंड ऑल्सो सम ऑफ द स्पीशीज जो डेयर की थी, एलेक्स की थी, वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। जो प्लांट्स थे जो वहाँ पे होते थे ऑलरेडी, विलो ट्रीज या बाकी ट्रीज होते थे, वो अगेन थोड़े थोड़े प्लांट होने लगे। तो क्या हुआ, इकोसिस्टम बैलेंस होना शुरू हो गया। तो अगेन प्रेसिपिटेशन स्टार्टेड कमिंग, बर्ड्स स्टार्टेड कमिंग, एक्वाटिक एनिमल्स स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड इट अगेन द रिवर वॉज रिवाइव्ड। So what happened? We could correct the environment after many years, 70 years. 1926 में खत्म हुआ ना सब कुछ, तो 70 years लग गए हमें उसको दोबारा स्टार्ट करने में। आज वो नेशनल येलो पार्क है, अभी भी सबने जानकारी ली है उसके बारे में। सो मेनी हैंड्स आई कुड सी राइजिंग। अगर ये एक्शन हमने 1995 में नहीं लिया होता तो हमारा नेशनल येलो स्टोन पार्क जो है, इट वुड नॉट हैव बीन द वे वी सी इट टुडे। So we have to be aware। आज ये गुरुकुल में बैठा हूँ तो आपकी यहाँ पे सुन के अच्छा लगता है कि आपको एकेडमी के अलावा और बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। शायद ये जो मैंने बोला, ऐसे एनेक्डोट्स आपको शायद सुनाए जाते होंगे, एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता होगा कि पेड़ लगाओ, पेड़ ये करो, वो करो। अनलेस यू अंडरस्टैंड द केस स्टडीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट से या बाकी डायरेक्टर साहब से, आप अपने पेडागॉजी जो हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, उसको आप वही पढ़ाओ, बट उसकी पेडागॉजी को क्या करिए, उसको कन्वर्ट कर दिए इनटू केस स्टडीज। लाइक आई हैव साइटेड वन, मैंने एनवायरनमेंट को समझाना है, अगर है इकोसिस्टम को समझाना है, आई शुड साइट द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट्स हैपनिंग। अनलेस वी डोंट मेक द केस स्टडीज एज ए पार्ट ऑफ आवर टीचिंग पेडागॉजी, मे बी वी डोंट इंस्टिल द टाइप ऑफ लर्निंग वी हैव इन आवर किड्स। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ट्यूटर से जो इंस्टीट्यूशन के हैं, बिकॉज इन इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के पास डबल जिम्मेदारी है, एक तो दिन की जिम्मेदारी है और 24 आवर्स की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इनकी जो लर्निंग मैथडोलॉजीज़ हैं, जो इनकी लर्निंग मैथडोलॉजी में जो विजुअल इफेक्ट आता है, जैसे लर्निंग बाय नोइंग, जैसे आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने कहा है कि आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जाए। तो what is the experiential learning? Learning is only if you experience how the things are happening. तो अगर उस तरफ हम अपना कुछ pedagogies को orient कर सकें, it will be more good to have learning curves done in our kids. आप बच्चों में वो बहुत देर तक याद रहेगा जो खुद किया होगा। Instead of putting our kid हर साल एग्ज़ाम देने के चक्कर में उसको एक कंटिन्यूस असेसमेंट में लाया जाए कि कोई प्रैक्टिकल दे दिया जाए। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, हमें हर हफ्ते कोई ना कोई असाइनमेंट होता था जिसको हमने कंप्लीट करके लाना होता था। वो हमारी बुक से हम देखते थे, कहीं आपस में 2 ग्रुप्स बैठ के बनाते थे तो कुछ ना कुछ बना के लाते थे। तो वो लर्न करते थे बाय एक्सपीरियंस, बाय एक्सपेरिमेंटिंग। वो जो मैंने लर्न किया है, इट हैज़ पेड मी हाउ माई ब्रेन हैज़ ग्रोन। बेशक वो काम नहीं आया होगा हमारा एक्सपेरिमेंट, बट इट हैज़ हेल्प माई ब्रेन टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। कुछ 2-4 और पेडागॉजीज हैं, आई बिलीव दे मस्ट हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज पेडागॉजीज एंड दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग। बट अगर मैंने कुछ कहा है तो इट हैज़ अगेन एंडोर्स वट एवर दे हैव बीन डूइंग। अगर कुछ हमारे आ जाने से या कुछ मेरी बात करने से कुछ बदलता है सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आई वुड बी वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस चेंज। हमारे यहाँ सिविल सर्विस में कहा जाता है बिकम द एजेंट ऑफ चेंज। आज मेरे यहाँ आने का ये मकसद था, जस्ट टू एनकरेज यू। आई एम सिटिंग हेयर, आई वॉज वन ऑफ द पर्सन हु वाज सिटिंग ऑन दैट चेयर सम ईयर्स बैक, एंड आई ऑल्सो एस्पायर्ड कि ज़िंदगी में मैं भी कुछ एस्टैब्लिश कर सकूँ। वो जो विल है अपने आप को एस्टैब्लिश करने की, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सारे किड्स से, सारे बच्चों से, सारे अपने बेटियों से, कि आपके अंदर जो विल है टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड बी मेंबर एज ए लर्निंग मेंबर एंड ए कंट्रीब्यूटिंग मेंबर, वो आप बनो। माई विशेस आर विद यू। एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क or interact with me? I'll be gladly sharing whatever I know little about things. Few of the students, अगर आप मुझे पूछेंगे, maybe I tell you more, because जो मुझे समझ आया, आज आपको environment के बारे में कुछ बोला जाए और ऐसा कुछ बोला जाए जो एक्चुअल में हुआ है। और येलोस्टोन पार्क में रिसर्च के बाद पता लगा है कि we can actually correct the mistakes done by us.
अगर हम मिस्टेक करेक्ट भी ना करें और अगर एनवायरनमेंट को ऐसे ही छोड़ दें तो नेचर बाय इटसेल्फ एनवायरनमेंट इटसेल्फ आल्सो रीजनरेट्स। हमने देखा अपने पहाड़ों में J&K में, अगर हमने कोई एरिया को सिर्फ फेंसिंग कर रखी है जंगल को, तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ फेंसिंग की है, उसको ग्रेजिंग से बचाया है ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स के नए शूट्स को खाए ना, तो जंगल नए रीजनरेट हो गए हैं, कई जंगल बन चुके हैं। तो गोया स्मॉल एक्शन ऑफ योर्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू योर वेलबींग, और जो आपका फ्यूचर है वो हमारा एक बैलेंस सिस्टम में जाएगा इन केस वी कंट्रीब्यूट वन एंड ऑल एंड वी मेक आवर सेल्फ सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दिस, राइट? All of you pledge today to be a contributing and developing member of this nation? Have commitment from your end? Thank you, thank you. So I would like, in case you want me to interact from this box, I interact from where? Okay. जल्दी से आइए और दो। गुड इवनिंग सर। सर मैंने सुना है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, तो जब आपने इंटरव्यू दिया था तो उसमें कैसा हुआ था? देखो इंटरव्यू में क्या होता है बेटा, यू हैव टू नो कि आपको वही पूछेंगे जिसके बारे में आप सक्षम हो। पहले वो पूछेंगे बेटा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो आपने कह दिया कि आई बिलोंग टू अ फैमिली, मेरा फादर टीचर है सपोज, तो एजुकेशन के बारे में पूछना चाहेंगे कैसा एजुकेशन होगा। आपको पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो बोलेंगे हाउ इज ज्योग्राफी रिलेटेड टू हिस्ट्री, तो आपको सोचना है कि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है क्यों, तो आपको जस्टिफाई करना। फिर वो आपसे वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे कि आपको हर चीज की समझ बूझ है या नहीं है, बिकॉज आप वो एक्सपर्ट बैठे हो, जैसे मैं हूँ, मैं आपको इंटरव्यू लूंगा, आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में तो बहुत फर्क है, अंतर है ना, तो आप मेरी नॉलेज को मैच करोगे नहीं। बट मैं ये जानना चाहूंगा, आर यू द पर्सन हु विल बी हैंडलिंग द असाइनमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट? सिविल सर्वेंट कौन होता है? जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट का आइडिया हो, या जो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, जो करंटली तुम पढ़ रहे हो, क्या वो अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह समझा हुआ है? क्या ज्योग्राफी को समझ लो, जैसे आपको बोलेंगे ज्योग्राफी में, मैं ज्योग्राफी का, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है बेटा? सेल एंड एनिमल सेल, बताओ क्या फर्क है? सर प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। करेक्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट है ना, और उसकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, जो सेलुलोज लेयर होती है, वाले एनिमल जो सेल है इट हैज अ थिन मेम्ब्रेन एंड इट डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, तो इट हैज टू बी डिपेंड ऑन, या जिस भी आपका एक्सपीरियंस है यू शुड बी नोइंग इट ऑल। जैसे मेरा जब इंटरव्यू पूछा था बेटा, आई वाज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो मुझे मालूम था कि मुझे पूछेंगे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, कि बताइए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा था आई बिलोंग टू द रोहेलखंड एरिया, तो मुझे बोलेंगे आप कैसे स्टेट हमारे आर्टिकल 370 के बारे में पूछेंगे, तो आर्टिकल 370 प्रिपेयर करना था। तो आई वन नोज कि तुम्हें क्या पूछेंगे, पूछेंगे वही जिसके बारे में आपको मालूम होगा। वो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपको कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे, बिकॉज यू हैव नेवर रेड, यू कैन नॉट आंसर इट, यू हैव टू आंसर व्हाटएवर यू हैव रेड और यू लव टू बी रीडिंग, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमने तो अभी तक पढ़ा है कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, हमने तो अभी केवल बुक में ही पढ़ा है, तो आप कश्मीर को ना? यस सर। हाँ, तो आप तो सर वहीं के, तो कुछ बताइए वहाँ के बारे देखो में। जन्नत क्या होती है, जन्नत में वो होता है जहाँ पे आपका दिमाग, फिजिकल सेंसेस और दिमाग सुकून में आ जाए। जब आप एक ग्रीन एरिया को देखते हो या साफ वाटर्स को देखते हो, आपको अच्छा लगता है ना? Yes, तो sir. जब कश्मीर में पहुँचते हो आप ग्रीन ही ग्रीन देखते हो। ग्रीन इज अ कलर विच इग्नाइट्स योर इनसाइड, आपका वो जो है पेशेंस और आपका सुकून, पीस आता है आपके दिमाग में ग्रीन कलर का देखने से। ग्रीन कलर, ऑरेंज देखोगे तो कुछ और सेंसेस आएगा। एक आपका दिमाग को कूल होता है, जो बड़ा ब्लू कलर होता है वाटर का, वहाँ काफ़ी वाटर है, तो ब्लू कलर की वजह से भी आपको स्मूथ होता है। फिर आपके पास एक क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो है टेम्परेचर इज वेरी सूदिंग। जैसे आजकल पूर्णिया में वी डोंट यूज एसी, आप बाहर भी जाते हो अच्छा लगता है, तो ब्रीज जो आती है इट प्लीजेज यू। और जो आपके फूड है या जो ऑर्गेनिक फूड होता है या एप्पल आप खाते हो, जो आपकी इमेजिनेशन को आप दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट, वो एक्चुअली अपने जो यहाँ बिजी लाइफ होता है उससे रिलैक्स मोड में जाता है। ही फील्स लाइक मैं हेवन में हूँ, क्लाइमेट की वजह से और आपकी स्नो कवर जो माउंटेन है उसकी वजह से, और जो स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं या जो फ्रूट्स वहाँ पे हैं, इसी वजह से जन्नत कहा जाता है। फिरदौस गर रोए ज़मीन अस अमी अस अमी अस अमी, ये फारसी के अल्फाज हैं,
कि अगर ज़मीन में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये कहा जाता है कश्मीर के बारे में, राइट? थैंक यू सर। कम टू कश्मीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नाम भी कितने बताओ बेटा, क्लास बताओ, सब्जेक्ट बताओ। आई वांट टू नो अबाउट यू। आप मेरे बारे में पूछते जा रहे हो, मैं तो एक्सटेम्पोर बोलता जाऊंगा। सर माय नेम इज युगराज कुमार। हैं? युगराज कुमार। जिब्रान कुमार। युगराज। युवराज कुमार। ओके ओके। क्लास क्लास 8C। 8 एंड सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मैथ। मैथ यू लाइक मोर। Yes. गुड गुड गुड। सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड इट टेक यू? हैं? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड इट टेक यू इन UPSC? फर्स्ट अटेम्प्ट। सर वन मोर क्वेश्चन। सर हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस? हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस? Confidence. Confidence is by knowledge. Knowledge is a great weapon for your confidence. You just learn thing and you will see your tongue will be speaking it out. Because I know so many things, 30 years experience. So I can speak because I have knowledge. The moment you have knowledge, you have energy to speak. And you can speak about subjects. So try to gain as many knowledge as you can. तुमने 3 Idiot फिल्म देखी है? नो। रैंचो को भी कभी अगर मौका मिलेगा आपको, तो रैंचो उसमें कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। मुझे लगता है कभी दिखानी चाहिए इनको। जो 3 Idiot फिल्म है उसमें रैंचो क्या कहता है, किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में बैठ जाओ, ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है। वो हर क्लास में बैठता था। तो मेरे साथ एक मेरा कजिन है, वो मेडिकल डॉक्टर बना। डॉक्टर क्या बना, वो एक बार ट्यूशन सेंटर में बैठता था, फिर दोबारा दूसरे सेशन में भी ट्यूशन सेंटर में बैठता था। उसका सेशन नहीं होता था, वो उसका एक ही बार बैठता था दिन को 3 घंटे का। वो और 3 घंटे दूसरे बैठते थे, इसमें तो और मैं दूसरा लर्न करूंगा। तो यू शुड हैव थर्स्ट टू नॉलेज। जिस दिन आपका थर्स्ट टू नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बाय प्रोडक्ट है। Good evening, sir. My name is Vishwamar Kumar. I read in class 8. हैं? Class 8, sir. क्लास 8, ओके। सर मुझे पूछना था कि सर पढ़ते नो पढ़ सब्जेक्ट। आई वांट टू नो अबाउट सब्जेक्ट। व्हाट फेवरेट सब्जेक्ट यू हैव? सर केमिस्ट्री। Chemistry, very nice. Organic and inorganic. Yes, sir. Good. Sucrose and fructose and glucose, you know about it? Tell No. me about sucrose. I don't know about, sir. हैं? I am reading. Sucrose रोज ही हम खाते हैं। अरे शुगर तो होता है sucrose। Oh, sugar. चीनी को sucrose से कहते हैं। Oh. Chemistry अगर favorite है तो organic has to be a favorite। Yes. मेरे सामने तुम खड़े हो ना, कि पूरा केमिस्ट्री हो। Chemist- बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है, Yes. इस एंटायर केमिस्ट्री। Yes. मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। Yes. जिसने केमिस्ट्री सीखी वो बायोलॉजी सीख जाएगा, जो बायोलॉजी सीखा वो केमिस्ट्री सीख जाएगा। एंड दोनों सीख जाएगा, वो भगवान को सीख जाएगा। Yes. एनीवे, आस्क द क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन वही था कि पढ़ते पढ़ते कभी सर मन भटकने लगता है, तो मन को वापस कैसे लाएं? करेक्ट। यू हैव टू बी अ मूवर्स। मूवर्स मींस मेडिटेशन। इन द मॉर्निंग व्हेन यू राइज, जब आप बेड से उठते हो, Yes. तो मेडिटेशन करना है बेटा। उसके बाद ऑक्सीजनेट करना है। श्वास लेते हैं, श्वास। Yes, sir. आपने योगा पढ़ा है? योगा हाँ योगा सर। यस। तो श्वास लेना है, ऑक्सीजनेट करना है ब्लड को, मेडिटेट करना है। Yes. आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो, आप वो जाप करते हो जाप करो, या मेडिटेट करना है मेडिटेट करो। Yes. उसके बाद योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। Yes, sir. उसका विजन करो, आंखें बंद करो, विजन करो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना, जो पढ़ना चाहते हो अपना विजन लो, ठीक है। Yes. और उसके बाद एक्सरसाइज थोड़ी कर लो, आगे पीछे टहल लो, या कुछ वॉक कर लो, या कुछ और एक्सरसाइज कर लो। Yes. और देन रिकॉर्ड करो उसको, जो पढ़ना चाहते हो उसको रिकॉर्ड करो पढ़ के, राइट। तो बिकम मूवर। द मोर यू बिकम मूवर, यू विल मूव। तो विल यू Yes. बिकम मूवर टुमारो? यस। So you'll be focusing well. ओके। Thank you. थैंक यू सर। Okay. थैंक यू। चलिए। Good evening, sir. My name is Yuvraj. I am from class 8. My favorite subject is maths. Math, good. Sir, I wanted to know how did you choose your aim and how should anyone choose his aim Choose in? your aim. Yes, sir. Okay. Anyone can And choose. how I achieved it? Yes. अरे मैंने वही कहा ना आपको, साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, एजुकेशन हो, जोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, रिलीजन हो, anything you tell me, I'll be just grasping it. I have thirst for knowledge. उससे क्या होता है, you know about your potential. मुझे नहीं मालूम था कि मैं बेस्ट किस में हूँ। I had studied physics, chemistry, all number of subjects. फिर अल्टीमेटली मैंने कहा I have a love for botany. बॉटनी मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने बॉटनी चूज किया।
as a career for civil service. While I have done my graduation in engineering, जब इंजीनियरिंग में था मैं, तो मुझे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स अच्छे लगते थे. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैथमेटिक्स का इक्वेशंस होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसको फर्दर ग्रेजुएट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का नाम होता है. तो आगे जाके पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. उसमें वो मेरा फेवरेट था इंजीनियरिंग में. जैसे आपका मैथमेटिक्स है, तो आजकल मेरा फेवरेट है क्वांटम फिजिक्स, वो मैथमेटिक्स है ना, एस्ट्रोनॉमी, केपलर्स लॉ, ये मेरे फेवरेट्स हैं. वो मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है बॉटनी, और बॉटनी से अच्छा लगता है आजकल मुझे साइकोलॉजी अच्छा लगता है. तो एवरी टाइम यू हैव टू डिस्कवर व्हाट इज एक्चुअली योर लाइकिंग. तो जिसमें आपकी लाइकिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना कैरियर दिख जाता है. तो जब मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो मुझे मैथ अच्छा लगता था. जब मुझे सिविल सर्विस करनी थी तो मुझे हिस्ट्री और बॉटनी अच्छा लगने लगा. तो मैंने वो दो चूज कर लिया था ऐसा सब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वही आपका कैरियर है. अगेन यू मस्ट परस्यू द टाइप ऑफ कैरियर योर हार्ट एंड सोल इज विद. जिसमें हार्ट एंड सोल है वो कैरियर लेना चाहिए बेटा. जैसे आपको उसमें 3 इडियट में भी लेसन दिया गया है, जिसमें हार्ट एंड सोल है वही आपका कैरियर है. जिसमें हार्ट एंड सोल नहीं है तो आपका एफर्ट हाफ है. आपकी पूरी एनर्जी स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल ये लग जाना चाहिए उसमें जिसमें आपने सक्सीड करना है. सपोज यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, यू शुड हैव नैक फॉर कलर्स, एस्थेटिक सेंस अच्छा होना चाहिए आपका. तो उस वाली वो मेरे पास नहीं है. आई डोंट हैव. यू मस्ट एनालाइज योर पोटेंशियल एरियाज. जहाँ पे पोटेंशियल आपको दिखता है तो यू कैन हैव ऑप्शंस 1 2 3 4. जैसे मेरे पास 4 ऑप्शन थे, उस 4 में से 2 कौन से अच्छे हैं तो उनको परस्यू करना है. वन ऑफ इट विल बी योर कैरियर. थैंक यू. राइट. Good evening, sir. I am Anushka of class 9th. Sir, I want to ask, how can we prepare for UPSC after class 10th? In case you read your 9th, 10th, 11th, 12th comprehensively and you understand the concepts, this will be a foundation for UPSC. In case you have to prepare for UPSC, I had to read of 11th, 12th syllabus. मुझे 9th तक नहीं पढ़ा मैंने, but 11th, 12th मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा. All subjects, economics भी, social sciences भी, biology भी, chemistry, physics, everything I had to again read. आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़े और जो साइंस वाले वो भी पढ़ने पड़े. ये तो सबसे पहले आप ये काम करो. दूसरी बात, आपने जिसमें ऑप्शन लेना है, सपोज ग्रेजुएशन करोगे आप तो ऑप्शनल सोचा है आपने पॉलिटिकल साइंस, तो ग्रेजुएशन कोशिश करो कि पॉलिटिकल साइंस में ही ग्रेजुएशन करो. ये अगर आपने ऑप्शन सोचा है ज्योग्राफी लेने का तो ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ ग्रेजुएशन के लिए कि उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी दिस एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट टू द फुलेस्ट. सपोज इंजीनियरिंग लेने का सोचा है, जो मेरा आज चीफ सेक्रेटरी है उसने शुरू से कहा था मैं इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में करूंगा IAS. तो उसने IIT दिल्ली में एडमिशन किया और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, तो उसने उस लेवल तक पढ़ा कि IAS में और सिविल इंजीनियरिंग में कर गया. तो डिपेंड्स करता है कि आप कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, तो उसको आप ग्रेजुएशन में ले लीजिए. और फिर आपका होना चाहिए एप्टीट्यूड टू बी abreast with the current knowledge, current affairs. सपोज अगर इंडिया चाइना पॉलिसी है, पहले 1962 में क्या हुआ था, हाउ वाज चाइना इन 1970, वो भी गरीब कंट्री था, फैमिन थी, इंडिया भी गरीब कंट्री था. हमने अपना सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी लिया, उन्होंने कौन सा बदलाव किया, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या चेंज था, हमारा पॉलिटिकल, हाउ डिड चाइना बिकेम एट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी व्हाइल वी आर स्ट्रगलिंग टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया कि वर्ल्ड के सेकंड लार्ज इकोनॉमी है. हम इंडिया वाले 1970 के बार हम बराबर थे दोनों. वो ऐसा क्या हुआ चाइना में जो यहाँ नहीं हुआ, ये आपको एनालाइज करना है और लिखने की कोशिश करनी है. नो टेक्स्ट बुक विल बी टेलिंग यू दिस. जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, क्रिटिकल ब्रेन नहीं रखोगे, तो आपको फाइंड आउट करना कि व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल बॉसेस इन चाइना. लाइक डैंग्स, वहाँ पे माओ जेडुंग के बाद मिस्टर डैंग आए, प्रीमियर ऑफ चाइना. ही टुक ए पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी की. तो वो जो उसकी पॉलिसी थी डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, दैट्स बेयरिंग द फ्रूट टुडे. व्हाइल इन इंडिया वी चोज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और हमने सब्सिडीज एंड अदर चीज़ों को हमने कहा हमारे गरीब लोग हैं, हम सब्सिडाइज करेंगे सारी सर्विसेज को, एजुकेशन को, बाकी चीज़ों को. तो वी टुक ए डिफरेंट रूट टू इकोनॉमिकली एम्पावर आवर पीपल, व्हाइल एज चाइना टुक ए डिफरेंट रूट टू एम्पावर देयर नेशन. So we can see कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था, it is being now seen as a successful model, while as we emulated Russia and other countries to succeed in socialist economy. कि हमारे पास लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा. तो जब तक आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करके प्रेजेंट नहीं करोगे, you won't be awarded any marks.
तो यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल ऑन योर एनालिसिस ऑफ द करंट अफेयर्स, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड है? Yes sir, thank you sir. You have to know the entire subject पता होना चाहिए आपको. Economics, geography, current affair, political science. You should be knowing everything, and you should have a critical brain. Analyze. चाहे वो तुम्हारा opinion हो, I can agree with my opinion or you can disagree. But देखने वाला जो है वो बोलेगा नहीं, this is the original thought of yours. क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का. अनुष्का. ये लगना चाहिए कि अनुष्का का original thought है ये कि पढ़ी पढ़ाई और क्रैम अप किया हुआ आइडिया नहीं है. तो वी आर एग्जामिनर जो बैठते हैं, दे आर वेरी क्लेवर. वी कैन अंडरस्टैंड दिस योर ओरिजिनल आइडिया और नॉट. यू विल सक्सीड इंशाल्लाह. ओके. Thank you, sir. Sir, my name is Arna Kumar Gupta. My favorite subject is maths. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप IAS कहाँ के हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर के बेटा. जम्मू अगमुड काडर कहते हैं उसको. वो जम्मू कश्मीर, करंटली जम्मू कश्मीर में हूँ मैं. सर आप IAS कब बने थे? 2010 में बैच मेरा है. इससे पहले मैं अपने स्टेट में ही सिविल सर्विस में था. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू बेटा, थैंक यू. मैथमेटिक्स सुन के अच्छा लगा बेटा. मैथमेटिक्स इज वेरी गुड थिंग. मैथमेटिक्स कैसे सीखा बेटा? हाउ डू यू लर्न मैथमेटिक्स? सर आवर टीचर. नहीं, कैसे, मेथोडोलॉजी क्या है? सर आई डोंट अंडरस्टैंड. मैं आपको एक टिप देता हूँ मैथ सीखने का. मैथ जो है इट्स ऑलवेज डन हेयर. आपने जो बुक है ना, आपकी बुकलेट, मैथ सीखने के लिए स्टेप्स होते हैं. आपने अगर a + b होल स्क्वायर का लिखना है, a² + b² + 2ab लिखना है ना सपोज, ये आपने a + b का स्क्वायर और नीचे आंसर लिख देना है. इसके स्टेप्स होते हैं ना बीच में, 5 स्टेप्स. वो 5 स्टेप जो 3 स्टेप हैं वो आपको दिमाग में लिखने हैं. वहाँ 2 ही लाइन में लिखना है आंसर. वहाँ मतलब आपने जब सॉल्व करना है तो क्या, जब आप ब्रेन में नहीं करोगे ना इसको, मैथमेटिक्स को लिखने की कोशिश करोगे तो मैथ सीखोगे नहीं बेटा. ये मेरे जो बेटा था, ही वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स. मेरा बेटा भी आपकी तरह 6th में जब था तो उसने ये ट्रिक सीखा था एक शुक्ला सर से. शुक्ला सर बिलोंग टू बिहार ओनली. आपका बिहार का टीचर था वो मैथमेटिक्स का. तो उसने उसको सिखाया कि मैथमेटिक्स जो सीखना है आपने वर्बली उसको दिमाग में करना है, बुक पे लिखना नहीं है, नोटबुक लिखना नहीं है. जिस दिन आप ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करोगे, यू विल बी द बेस्ट मैथमेटिशियन. सारा मैथ यहाँ होना चाहिए, बुक पे लिखा हुआ कम होना चाहिए. वो मेथोडोलॉजी जब सीखोगे आप, एंड मैथ में क्या है, देयर आर मोर देन वन मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. जब तक आप ये नहीं सीखोगे, ये क्वेश्चन जो है ये आप अल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं, देन भी आप मेडिसिन बनोगे. कौन सा सबसे फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया कौन सा है? आर्यभट्ट. आर्यभट्ट. रामानुजा भी है. सर Thank you, sir. Okay, good. Good evening, sir. Sir, my name is Ruman Shams. I am from class 8, and my favorite subject is physics. Physics, quantum physics. हाँ, चलिए बताइए. Sir, my question is that what are your favorite books which you studied? Favorite books? Books, mostly academic books because IAS depends most on the academic subjects. But anyway, some additional books you can also read. Yes, sir. To build your personality. You want to see additional books or you want to know about academic books? Academic books. Because I did in way back 15-16 years. But mostly what we did is there are coaching centers in Delhi and elsewhere. You must be having coaching centers here also around. Yes, sir. So they, if you see the syllabus of IAS, any subject, it's a huge syllabus. In case you go for the textbooks, it will take you long time to complete all the textbooks. Yes, sir. So better would be to have some of the preparatory notes, because you should have, they extract answers of the syllabi from various textbooks and compile it. In case you get the reading material from any of the tutorials, it will be helpful for you in case you are aspiring to become IAS. Yes, sir. So no, don't go for textbooks as such. Go for those preparatory notes. Yes. And also prepare yourself through the test series. Yes. It will help you in getting through. Yes, sir. Okay, beta. Thank you, sir. Good evening, sir. I am Shreya from class 9th. I want to know that I have heard that UPSC is all about social science and arts. So I want to know that is there any involvement of mathematics in UPSC? Mathematics is full 100% scoring. So sociology, history, geography are average subjects, 60%, 70%. Whatever you know, you may be PhD in one of the subjects, or you may be having good knowledge of the subject, but you won't be scoring much more than 70% or 60%. While in case mathematics, you know everything, you can even score 100%. You'll be the top scorer.
It's no bar. But now it depends. You have to manage between the solving, like I was telling the kid. If you do mathematics here, most of the mathematics here, and write only, then you will be doing it quickly, because time is the main deciding factor. In case you take time to solve an equation in mathematics, it normally takes more than 3 minutes to solve an equation. While as we have only 30 seconds for a question. So you have to make a choice whether you are able to solve that mathematical problem within 30 seconds or not. So you have to be that proficient in your subject. That's why mathematics is not chosen by people. But people choose those subjects which are easy to adopt and learn. Mathematics, if you are having command on mathematics, it will be top scoring. But you have to manage the time. 30 seconds, one question answer. Otherwise, normally it takes 2 to 3 minutes. Right? Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Special subject is half of the battle won. If you choose good subjects where your good heart and soul is, half of the battle is won. But why everybody want to become IAS? Okay, Shubham Kumar is a role model. But IAS is not the world across globe. There are many careers. Quantum physics happens to be the most known career. Psychology happens to be one of the growing careers. Sociology is a very favorite subject these days in the world. Environmental sciences. These are very good subjects. Why everybody wants to become IAS? It's by chance IAS can be examination and you can get through or not. But if you don't get through IAS, that doesn't mean you're not less intelligent. It's only by chance. See, I can tell you my example. I told you I chose botany as my subject, though I was an engineering graduate. So my subject was botany, and I was within the botany I liked genetics. So luckily in that year there were 4 questions on genetics, while I had to appear only in 5 questions. Out of 5, 4 I got from genetics, only my favorite area. So it's by chance I am in IAS. So it's only a chance. I can't say any of you preparing for IAS is less intelligent. It's a chance that you will be in IAS. But there are so many careers. Why you only ask for IAS? It is not giving you pleasure. Contentment is more important. Anyway, go ahead. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर एनडीए में सर कैसा क्वेश्चन रहता है, और सर हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एनडीए बोल नहीं कि एनडीए में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, बट आई बिलीव एनडीए में एनालिटिक मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है. एनालिटिक मैथमेटिक्स, जैसे ब्रेन के बारे में, ब्रेन टीजर हैं, हाँ मैथमेटिक्स, एनालिटिक ब्रेन, एनालिटिक नॉलेज, एनालिटिक ना, जैसे पजल सॉल्विंग होता है, या आपके मैचिंग नंबर्स होते हैं, या पैटर्न मैचिंग होते हैं. दे वांट टू टेस्ट योर स्किल्स, मैथमेटिक्स स्किल्स. मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखते हैं, इंटेलिजेंस को देखते हैं, ताकि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. तो दे असेस यू ऑन दैट टर्म. बट जो एनडीए में अपेयर किया होगा बेटा, मे बी ही एबल टू गाइड यू मोर बेस्ट. बट मेरा जहाँ समझ आती है, आपका एनालिटिक मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो आपको सीखना चाहिए अभी से. राइट? थैंक यू सर. ओके. Sir, I am Arsh Singh of class. What subject we can choose for IAS and what is the syllabus for this? More. Maths. हैं? Maths. मैथ के टीचर कौन है? पूछे मैथमेटिक्स में मैथ के टीचर कौन है? आई वांट अ सॉल्यूशन. हाँ, यू आर द मैथ टीचर. अरे कमाल. मैथ तो हमें डर लगता था, ये बच्चे सब मैथ पसंद करते हैं, ये तो पक्का आईएएस बनेंगे. मैथ अगर आपको पसंद है, दैट मीन्स आपको मैथ सिखाने वाला बंदा ठीक मिला है. गुड. और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? What is the syllabus for IAS? नॉर्मली बेटा वो सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं जिसमें आपका कमांड हो टू आंसर इन ए वेरी क्विक वे एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. क्विकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली किस में आंसर दे पाओगे. अगर वो मैथमेटिक्स है तो वो भी हो सकता है, अगर सोशियोलॉजी है वो भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस है वो भी हो सकता है. अब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लोग करते हैं, उनको लिखना और आंसर देना ईजी लगता है, क्विकली, तो इसलिए उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए. बट अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स टीचर आपको मिल रहे हैं तो मैथमेटिक्स भी बहुत बुरा सब्जेक्ट नहीं है बेटा. पीपल डू क्वालिफाई यूपीएससी इन मैथमेटिक्स एज वेल. तो जहाँ पे आपका माइंड एंड सोल बनेगा ना, आप बड़े सब्जेक्ट पढ़ लो,
उसमें जो अच्छा लगने लगा उसी को चूज करके दे दो बेटा। क्विकली आंसर करना है, कंप्रिहेंसिवली करना है, यही आंसर है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सक्सेस, वेरी नाइस, गुड। दिस इज अ वेरी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर आल्सो। सक्सेस, देखो बेटा, आप मेहनत करते जाओ, अपना जो आपको दिया जाता है ना कर्म, मैं इसको स्पिरिचुअली आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आप अपना कर्म करो। आपका भी कर्म क्या है, आपको यहाँ भेजा गया है स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में, तो बोर्डिंग स्कूल में आपको जो जो करने को दिया जाता है, इसको आप एफिशिएंटली करने की कोशिश करो, कंप्रिहेंसिवली करने की कोशिश करो और उसमें एक्सेल करो। जो भी तुम करो उसको एक्सेल करो। जब एक्सेल तुम करोगे और अपने आप को स्किलफुल बनाओगे, स्किल्स, ट्राई टू लर्न द स्किल्स। आप, एक होता है कि पहले हमारे जब अंग्रेज लोग हम पे हुकूमत करते थे, दे नीडेड पीपल फॉर देयर फैक्ट्रीज, देयर ऑफिसेज, एंड वो हमें अंग्रेजी सिखाते थे और रूटीन के काम सिखाते थे, तो स्किल नहीं सिखाते थे। स्किल की उतनी ही सिखाते जो उनको स्किल चाहिए होता था। बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, तो यू शुड बी हैविंग स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? लर्निंग स्किल्स होती हैं, इमोशनल स्किल्स होती हैं आपकी, आपका टेक्निकल स्किल्स होती हैं। ये जो स्किल है, अगर आप स्किल सीख रहे हो तो मेरा यकीन है कि एक ना एक ऑप्शन आपको मिलते। जैसे आपका डॉक्टर है, डॉक्टर क्या होता है? बिकॉज ही हैज़ अ स्किल इन मेडिकल साइंसेज। इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है? उसकी स्किल होती है टू बिल्ड बिल्डिंग्स या रोड्स या कोई मशीन बनाने की स्किल होती है। इसी तरह जो बाकी काम कर रहे हो, जैसे कोई ऑफिस में मैनेजर बनता है, तो उसके पास क्या स्किल्स है? मैनेजमेंट स्किल्स। जैसे मैं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास स्किल है मैनेजमेंट स्किल, या मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आपका जो टीचर है, दे मस्ट बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो या आपके पास एकेडमिक नॉलेज को ट्रांसलेट करने का स्किल है। आपको जो फोटोकॉपियर कहीं दिखा होगा, फोटोकॉपियर करता है बंदा, उसको फोटोकॉपिंग की स्किल है। तो अगर आपने लाइफ में सक्सेस होना है तो बी ए स्किलफुल पर्सन। वो कोई भी स्किल हो जाए। जैसे हमने IAS करना था, आपने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, हमारे पास स्किल क्या था? हमारे पास स्किल था कि वी कैन सिट इन वन प्लेस फॉर 14 to 16 आवर्स कंटिन्यूअसली। 14 से 16 घंटे हम एक ही जगह बैठ के पढ़ते थे, और पढ़ने के साथ उसको मेमोराइज करने की स्किल थी मेरे पास। तो मेरे पास जो मेमोरी की स्किल थी, या एक जगह बैठने की स्किल थी, या अपने आप का फोकस करने की स्किल थी, दीज 3 स्किल्स हैव मेड मी क्रैक द UPSC। अगर आपने जो लक्ष्य बनाया है, उसके लिए जो स्किल चाहिए, वो स्किल से डेवलप करना है आपने। और आई वुड सजेस्ट कि आप रेजिडेंशियल स्कूल में हो, यहाँ आपको ऑल राउंड स्किल सिखानी चाहिए। इवन हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को सब पता होता है, बट जब एग्जाम का टाइम आता है उनको बुखार आ जाता है, बिकॉज उनके पास वो एंग्जाइटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी को मैनेज करने की स्किल, वो भी आपके काम आती है सक्सेस के। तो सक्सेस कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन ऑफ द पैरामीटर, बट द मोस्ट एसेंशियल पैरामीटर फॉर अ सक्सेस इज यू शुड हैव स्किल टू अचीव योर गोल्स। तो स्किल डेवलपमेंट करना ऐसे स्कूलों का काम है। जो डे स्कूल होते हैं, उनमें वो स्किल डेवलप नहीं होती है। हम आते हैं, पढ़ते हैं, निकल जाते हैं। आधा दिमाग हमारा घर में होता है, टीवी या बाकी गेम्स में। तो रेजिडेंशियल स्कूल का काम ही यही है। तो आप जहाँ बैठे हो, यू आर हैविंग मोर चांसेस टू बिकम ए स्किलफुल पर्सन एंड मोर चांस टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। जैसे फाइनेंशियल स्किल की बात करें, आपको ये नहीं सिखाया जाता है कहीं भी किसी स्कूल में कि हाउ टू मैनेज योर लाइवलीहुड, या अपने पैसे को कैसे कमाना है। जैसे आपने एक बुक का नाम है वो मनी, नॉलेज ऑफ मनी, मनी की नॉलेज की बुक पढ़ी है, उसमें स्किल सिखाते हैं। या एक आपने सब में पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड वन बुक, आई विल सजेस्ट यू, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड कितने लोगों ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है क्या? हाँ। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बनी है, वहाँ क्या सिखाता है? वो फाइनेंशियल स्किल सिखाता है। अगर फाइनेंशियल स्किल सिखाता है तो वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि कैसे सक्सेस होना है। जो इसका क्वेश्चन है बेटा, क्या नाम था आपका? आदित्य। तो आप वो रिच डैड एंड पुअर डैड वाली बुक पढ़ डालो बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा है। राइट? ऑल ऑफ यू शुड रीड इट। और एक और बुक पढ़नी चाहिए आपने, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स किसने पढ़ी है? वेरी फ्यू। तो आई वुड सजेस्ट मैनेजमेंट कि ऐसी बुक्स उनको ला के दी जाए। एटॉमिक हैबिट्स हुई, या जैसे रिच डैड पुअर डैड हुआ, या इस तरह सेपियंस युवा नोबल हरारी की है। तो वो लाइब्रेरी में, तो इनको सबको बोलिए कि पढ़ डालें सब। हाँ, तो आप लाइब्रेरी में सारी, मुझे बताया गया मैनेजमेंट से
कि सारी ये बुक्स जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब लाइब्रेरी में है। अगर वाकई आपको कैरियर में आगे जाना है तो यू हैव टू लर्न अबाउट फाइनेंसेस, यू हैव टू लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू लर्न अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, योर स्पीकिंग स्किल्स। ये सारे स्किल्स सीखने के लिए सारी बुक्स इन्होंने मैनेजमेंट ने रखी हैं लाइब्रेरी में। मेक गुड यूज ऑफ दैट लाइब्रेरी, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, दिस फॉर ऑल। चलिए। Good evening, sir. My name is Arush Arya from class 6. My favorite subject is history, and my question is, what was your history you told? Yes, sir. I qualified my UPSC in botany and history, and I have studied history only up to 8th primary. 8वीं जमात में हिस्ट्री छोड़ दिया। उसके बाद IAS जब करने की बारी आई तो मैंने हिस्ट्री से ऑप्शन लिया। तो देखो कितना अच्छा सब्जेक्ट है ये। 8वें तक ही पढ़ा, उसके बाद फिर दोबारा प्रिपरेशन जब करनी थी तब पढ़ा। और मैंने पढ़ा क्या, मैंने पढ़ा कि कैसे मगधा एम्पायर जो यहाँ का था, पता है मगधा एम्पायर कहाँ था? कहाँ था मगधा एम्पायर? मगधा एम्पायर I don't know. है Don't know. बिहार, पूर्णिया। पूर्णिया वाज मगधा। पाटलिपुत्र था उसका कैपिटल। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना। तो आप तो मगधा के अशोक हो। वाई अशोक? अशोक क्यों जाना जाता है हिस्ट्री में? ही वॉज अ ग्रेट। Yes, sir. वाई वॉज ही ग्रेट? Sir, because he ruled all over India. That's why. Not only ruled, because he was ruler of very big land, and he could influence the life and economy of this continent. Yes. He was, and he nurtured the values of humanity. अशोका के पिलर देखते हो ना आप जगह जगह? Yes, sir. वो अशोका के पिलर यहीं से तो आए हैं बिहार से, हैं? तो आप तो अशोक हो हमारे। मगधा वो 16 एम्पायर्स थी हमारी। मगधा वाज वन ऑफ इट। और इसकी भी ऊपर एम्पायर एक थी, वो थी टक्सिला में। टक्सिला में नॉलेज वाली एम्पायर थी, जहाँ के चाणक्य थे। चाणक्य वाज फ्रॉम टक्सिला, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, वो टक्सिला में था। तो चाणक्य केम फ्रॉम टक्सिला। एंड मगधा में ये लोग थे मौर्याज, इनको मौर्याज कहते थे हम। तो यहाँ पे उन्होंने इसको बढ़ाया। और ये क्यों सक्सेसफुल हुए, मगधा वाले क्यों सक्सेसफुल हुए? बिकॉज यहाँ पे आयरन डिस्कवर हुआ। आयरन कहाँ मिलता है बेटा? ये पास में उड़ीसा जो था, इट वॉज पार्ट ऑफ मगधा। जो आयरन इन्होंने, ये हिस्ट्री से मैंने सुना है बेटा, और हिस्ट्री से पढ़ा है। तो आयरन जब डिस्कवर हुआ और कोल डिस्कवर हुआ, यहाँ के लोगों ने, बिहारियों ने यहाँ पे आयरन के वो बनाना शुरू किए, क्या? तलवारें। जब आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो बाकी जगहों पे कॉपर इस्तेमाल होता था, बोन इस्तेमाल होती थी, या कुछ और डंडे वंडे इस्तेमाल होते थे। तो आयरन के आगे ना डंडे चले, ना बोन चला, ना कॉपर चला, ना कुछ चला। तो आयरन ने सभी किंगडम्स को अपने साथ मिला लिया। तो अशोक बिकेम द ग्रेट, सारी किंगडम को लाया। फिर फाइनली उसने क्या किया? कलिंगा की वॉर जीती। कलिंगा कैसे वॉर जीती? बिकॉज कलिंगा के पास भी थे वो तलवार शलवार सारे, बट इसके पास आर्मी बहुत बड़ी थी, एंड ही हैड अ स्किल टू फाइट। तो ही कुड फाइट देम, एंड उसको भी अपने साथ मिला लिया। बट मिलाया जब तो कितने लोग मर गए? 6 लाख पीपल बुचर्ड। जब उसने देखा 6 लाख पीपल बुचर हो गए तो क्या हुआ? उसकी ह्यूमैनिटी के अंदर बोला ये मैंने अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद क्या किया उसने कहा ऐसा कोई बुद्धिज्म वाले मिले उसको, बोला शांति तेरे दिमाग में नहीं आएगी जब तो तुम गॉड के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ोगे। देन ही बिकेम बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म का पैगाम क्या था? पीस का। तो ये कहाँ से पता लगा बेटा हमें? तो हिस्ट्री से पता लगा। तो हिस्ट्री से ये पता लगा कि वन हैज टू बी स्किलफुल, वन हैज टू बी रिसोर्सफुल, वन हैज टू बी हैविंग अ ह्यूमन हार्ट टू बी सक्सेसफुल, एंड उसकी वजह से ग्रेट बनोगे आप। तो विल ऑल, तुम्हारा क्या नाम बताया? आरुष आर्या सर। हैं? आरुष आर्या। आयुष। शुड वी कॉल यू आरुष द ग्रेट? So let you be Arush the Great. Thank you. Thank you, sir. Okay. Sir, my name is Ishan Vats from class 6B. My favorite subject is civics. My Physics. Sir, civics. Civics. Oh, very nice. Sir, my question is, sir, सिविल सर्विस में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए? मुझे समझा क्या बोला? Civic. Because मैंने सिविक मोर पॉपुलर है ना? Yes, sir. देखो हर जगह सिविक है बेटा, Yes, हर sir. जगह सिविक ही तो है। सिविक सेंस कहते हैं ना। सिविक सेंस क्या होता है? कूड़ा मत फेंको, आपको यहाँ स्कूल में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन से बैठो, किसी की लाइन मत तोड़ो, कूड़ा मत फैलाओ, है ना?
ये सब क्या है? सिविक। ये सिविक सेंस ही तो है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अपनी मैनेजमेंट को कि एक सब्जेक्ट सिविक सेंस के बारे में पढ़ाया जाए, या एक सेशन कम से कम हफ्ते में वन ऑफ द सेशन शुड बी ऑन सिविक। मुझे लगता है, उम्मीद है कि कराते ही होंगे। हाँ, तो वो सिविक जो है, सिविक इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप ह्यूमंस हो तो एनिमल से डिफरेंट कैसे हो? एनिमल भी है, गाय भी है, और वहाँ बच्चा भी इंसान का भी है। दोनों बच्चे हैं ना, गाय का बच्चा भी है, और देखा ना गाय का बच्चा, वही पैदा होता है, इंसान का बच्चा पैदा होता है। तो इंसान का बच्चा उससे अच्छा क्यों है? ओनली सिविक मेक्स हिम डिफरेंट। जब उसमें सिविक सेंस आती है, वो कपड़े लगाता है, वो अपने ब्रश करता है, वो अपने ग्रूम करता है, अपना शेव शूव करता है, सब ठीक करता है, तो अच्छा प्रेजेंट करता है अपने आप को, कम्युनिकेशन करता है, तहजीब से बोलता है। तो ये गाय का बच्चा ऐसा कुछ नहीं करता है। तो हम एनिमल से अगर डिफरेंट है तो बिकॉज ऑफ सिविक है बेटा। तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ अच्छा? सिविक्स। सिविक, बिकॉज यू आर सिविक। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? कितने? बेटा पढ़ना तो इनिशियली यू शुड रीड 8 to 10 आवर्स, बट जब प्रिपेयर करना है, जब एग्जाम अपेयर करना है, तो 14 to 16 इज आल्सो रिक्वायर्ड एट टाइम्स। 14 to 16 के बाद जब प्रिपेयर करना है 6 मंथ्स के लिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और उससे पहले 8 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 1 साल 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल पहले 8-8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आपको 14 आवर्स पढ़ना है। थैंक यू। Good evening, sir. My name is Pratigya. I am from class 9th. My question is that कि आपने अपना फोकस कैसे मेंटेन किया अपने गोल को अचीव करने के लिए? इंसान ने अपनी अगर इच्छा को, मैं स्पेशली आंसर करूंगा, आप जो चाहते हो बनना, मैनिफेस्टेशन का नाम सुना हमने? मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन का सुना है कभी आपने? मैनिफेस्ट क्या होता है? Yes, मैनिफेस्ट sir. जब ध्यान लगाते हो ना, जैसे हमारे पुराने आपने सुना ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो वन में जाते थे, ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने का मतलब वो भगवान को सीख करना चाह रहे थे। या जैसे बुद्धा की एग्जाम्पल ने दिया, बुद्धा आया बोधि ट्री की, गया में आया ना, वो बोधि ट्री के बैठा, कई देर बैठा, मेडिटेशन करता रहा। क्या कर रहा था वो? ही वॉज सीकिंग ट्रूथ, ही वॉज लुकिंग फॉर ट्रूथ। तो ही फोकस्ड, अल्टीमेटली ट्रूथ गॉट रिवील्ड कि भाई यू आपने राइट पाथ, राइट स्पीच, राइट हियरिंग, राइट कंडक्ट, ये 8 प्रिंसिपल उसने अडॉप्ट किए कि ये 8 प्रिंसिपल कोई करेगा तो उसको ट्रुथ मिलेगा। कि आपकी हॉबी क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पुराना क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। आपने जो कुछ बनना है ना, उसके बारे में पहले मैनिफेस्ट करो, और जब आप सोने का वक्त जब आएगा, टेक ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ लो, और उसके बारे में सोचो कि मैंने ये बनना है, इसके बनने के लिए मुझे पढ़ना है, इसके बारे में ये जानकारी हासिल करनी है। तो स्लीप विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग दैट पर्सन और दैट गोल अचीव करने का सोचो जो तुम करना चाहते हो। आपने कहा ना सक्सेस होना या क्या अचीव कैसे करना, फोकस कैसे करना है, तो फोकस तब आएगा जो आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचते सोचते सो जाना है। आपने टीवी देखते हुए या कोई और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सोना नहीं है। आपने सोना है उसी चीज़ को, जैसे आपने कहा, आपने सपोज आपने कहा कि मैंने अपनी अपने आप को डिजीज़ कंट्रोल करना है। सपोज आपको कोई डिजीज़ है, वो कंट्रोल करें, तो आप उसको बोले मैं आपको अपने आप को ठीक करूंगी या करूंगा या वटेवर, एंड इसको लेके आपने, हाँ मेरे आई विल स्ट्रेंथन माई सेल्फ, मैं परहेज करूंगी, वटेवर जो मैंने उसके बाद सोचते तो योर ब्रेन इज एक्चुअली ट्राइंग टू हील यू फ्रॉम इनसाइड। जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप अचीव करना शुरू कर दोगे, और उसकी जो पूरी वेव लेंथ होगी वो आपको पूरी एनवायरनमेंट में सराउंड करेगी और उसको एम्पलीफाई करेगी। उसको आप साइकोलॉजी में कहते हैं, इसको साइकोलॉजी की ये साइंस है आजकल, मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन कर पढ़ोगे तो फोकस कर सकोगे। मोस्टली कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी अक्सर छोटा छोटा पीना है, और जो पढ़ना है वो अपने दिल से पढ़ना है। ये नॉलेज है, ज्ञान है, इससे मुझे लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि मैंने इंटरव्यू में देखा है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में कि वो लोग हॉबीज़ पूछते हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। हॉबी का आप आप कोई भी हॉबी शुरू करोगे तो उसकी आदत को पड़ जाएगी। गार्डनिंग कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड हॉबीज। गार्डनिंग में क्या होता है, हाथ पाँव मसल सब इन्वॉल्व होते हैं और दिमाग भी सोचना है। तो ऐसा हॉबी इनकलकेट करो जिससे आपका पूरे बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हों। जैसे आपका ऐसी रैकेट गेम्स होती हैं, जो रैकेट गेम में आपका हैंड भी चलता है, रिस्ट भी चलता है, पाँव भी चलते हैं। तो इट कैन बी प्लेइंग कैन बी हॉबी, योर गार्डनिंग कैन बी हॉबी। कई लोगों का होता है रीडिंग कैन बी हॉबी,
है ना, या कोई बुक्स के साथ बैठता है, बुक्स पढ़ना, जैसे मेरी हॉबी हो सकती है बुक्स, आई लव बुक्स, या नॉलेज सीख करते रहता हूँ मैं, तो हॉबी कुछ भी हो सकती है आपकी, बट इट शुड बी हॉबी फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, आपने जिसमें मज़ा आता है आपको, जिसमें आप बैठो आपको पता नहीं लगता कैसे 2 घंटे बीत गए, तो इस तरह की हॉबी इनकलकेट करनी है आपने। तो हर बच्चे को अपनी हॉबी बनानी चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। थैंक यू सर। Sir, my name is Aditya Raj from class 6B. My question is how to be satisfied by the life? सेटिस्फाइड बाई लाइफ? Yes, sir. हाँ, ये तो आपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, ये बड़ा मुश्किल आंसर है इसका। मुश्किल नहीं है, अगर समझ पाओ तो बड़ा आसान है। देखो बेटा, आपकी जो कैपेसिटी है ना, आपकी जो फैकल्टी है, मेरे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास भी हैं। Yes, sir. मेरे पास 2 आंखें हैं, तुम्हारे पास भी हैं। Yes, sir. तुम्हारे पास ये बाल हैं, सब कुछ है, तुम्हारे पास जो चीज़ें मेरे पास भी हैं। तो अब आपने स्ट्राइव करना है अचीव करने का बेस्ट व्हाट कैपेसिटी यू पोजेस। और अगर आप अपनी कैपेसिटी से संतुष्ट हो कि मैंने पूरा एफर्ट लगाया है और जो मुझे मिला है ये मेरा एफर्ट से मिला है, तो एक कंटेंटमेंट आती है, और जितना डिज़ायर हो, जैसे बुद्धा की एग्जाम्पल दे रहा था ना मैं, डिज़ायर जो है इससे आपका एंग्जाइटी बिल्ड होता है। अभी क्या कहते हैं, जो साइकिल पे होता है वो कार मांगता है, कार में जो होता है वो बड़ी कार मांगता है, बड़ी कार में जो होता है वो कहता है मेरा जहाज़ भी होना चाहिए, जहाज़ जो होता है कहता है मेरा मल्टी मिलियनर होना चाहिए। तो ये डिज़ायर जो ह्यूमन डिज़ायर है ये हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका होता है। तो अपने आप को इतना तक होना चाहिए आपको कि यू शुड बी लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ। जैसे आपको जो खाना है बैलेंस डाइट मिलना चाहिए आपको, यू शुड बी एबल टू एंजॉय द सनलाइट, पानी पीने को होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करोगे वेल्थ, सपोज 10 करोड़ रुपीज़, बट यू डोंट रिक्वायर मंथली 10 करोड़ रुपीज़, या आपका मंथली खर्चा होता है 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपये, आप उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट आपकी है नहीं। यू कैंट वेयर मोर देन 2 क्लोथ्स। आप जो क्लोथ पहनोगे आप 2 या 3 कपड़े पहनोगे, और ये कितने होने चाहिए, हफ्ते में अगर 7 भी आप रहोगे 7 ही पैंट कोट चाहिए आपको, 7 के बाद दोबारा लगा सकते हो इसको। आप चाहो तो 300 भी ला सकते हो, मगर 300 पहनने का मौका आएगा 1 साल के बाद, तब तक फैशन बदल जाएगा। तो ये आपका एक्स्ट्रावेगेंट है। तो आप उतना सीख करो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और जो आपका जिसमें आप खुशी मिलती है उतना सीख कर लो। उसके बाद एक्सेप्ट ना करो ज़्यादा, उसके बाद कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। और इसका कंट्रीब्यूट करना शुरू कर, मतलब अगर आपके पास वेल्थ आती जा रही है और आप क्या करोगे इसका पता नहीं लग रहा है, तो गिव चैरिटी। तो स्टार्ट गिविंग चैरिटी होती है, एक लिमिट आपका मिल गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया आपका कि मुझे हर मंथ में 50,000 रुपये अपने लिए चाहिए। उसके बाद जो पैसा आएगा, आई विल बी हेल्पिंग अदर्स और अदर्स। द मोमेंट यू स्टार्ट चैरिटी यू विल फील कंटेंटेड, तो आपको कंटेंशन मिलेगा, राइट? चैरिटी इज द बेस्ट वे टू कंटेंट योर सेल्फ। बट चैरिटी तब। सर, गुड इवनिंग। माय नेम इज अर्नव राज, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी कभार बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता है, तो फिर उसमें कैसे वो उनको लगता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से नहीं आता है। ऐसा आज तक हमने देखा नहीं कि आपने मेहनत की हो। बिकॉज जब आपने देखा, आपने एक कॉमन एग्जाम्पल में दूँ आपको, आप जब एग्जाम देते हो अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपने अटेम्प्ट किए होते, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द हॉल आपको अपना आपका असेसमेंट पता होता है कि आपने ये ठीक किया, इतना कि इतने नंबर आपको आने चाहिए। कभी किया आपने सेल्फ मार्किंग की है? यस सर, किया। हमेशा सपोज आपने 100 मार्क का क्वेश्चन था, जब आप बाहर आए तो आपने अपने आप को खुद नंबर दिए हैं कभी? यस सर, मुझे 60 आना चाहिए, 55, तो गोया यू आर वैलिडेटिंग योर ओन सेल्फ। तो वो जो जब रिजल्ट आता है ऐसे आसपास उतना ही होता है। अगर आपने 55 दिए हैं, आपको 50 आ सकते हैं या 60 आ सकते हैं, यही रिजल्ट होता है। तो एवरीबडी को मालूम है कि मैंने जितना एफर्ट लगाया उसके हिसाब से मुझे मिला है, और जिसको तुमसे ज़्यादा मिले हैं आपको मालूम है शायद ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कर पाया है, तो मैं अगली बार इसको कम्पीट करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट ये है कि कहीं कहीं चांसेस किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। बट वो जो आपकी एफर्ट है, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग यू द थिंग्स यू हैव इन स्टोर। आपकी एक जो सर्वाइवल का मेथडोलॉजी है, इट हैव बीन डिफाइंड बाय द ऑलमाइटी फॉर यू। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते जाओ, जो आपको लिखा हुआ है तकदीर में वो आपके सामने आता जाए। जैसे मैं बताऊं आपको अपने बाप हैं, मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर ना बना, समहाउ कोई रीज़न रहा, तो मुझे लगा मैं फेल हो गया, ऐसा तो नहीं लगा। मैंने कहा नहीं चलो, ये दिस वाज वन चांस आई कुड गेट इट। तो आई ट्राइड मैथमेटिक्स करके आई गॉट इंजीनियरिंग। अब मुझे लगा इंजीनियरिंग मेरे कप ऑफ टी नहीं है, बट हो गया। तो मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई सिविल सर्विसेज।
तो एक उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग सर्विस ऑलरेडी सर्विस किया, तो उसमें फेल हो गया। एक और बार मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, वो भी फेल हो गया। तो फेलियर हैज़ नॉट डिमोरलाइज मी। मैंने कहा चलो ये नहीं मिला, अगले बार मिल जाएगा, दूसरा कोई दिया, अल्टीमेटली सिविल सर्विस दिया तो ये हो गया। तो यू हैव टू, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। जिस दिन आप ये मानना शुरू कर दोगे कि फेलियर जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द सक्सेस, उस दिन आप सक्सेसफुल हो। थैंक यू सर। ओके। Good evening, sir. Myself Prem. I study in class 10th and I'm fond of social studies, especially history and political science in that. किसमें fond of हो? Social studies. Social studies, very nice. Sir, my question is very simple. As you said, if failure is the door of success, it's very easy theoretical, but in practical life, accepting it not easy. My question is very simple to you. How to generate patience? Since I am a student of board examinee, I'm board examinee in this years. I could follow. How to generate patience? Patience. Okay, okay. Meditation, beta. Mover. Again, answer the same. Patience, meditation, oxygenation, exercise, vision. Keep trying, try again. वो सारा methodology जो है, and जो patience है, it is itself is a development of personality. जो boarding school होते हैं, इसमें हार और जीत, ये गेम जो है ना, गेम सिखाते हैं लोगों को। वॉलीबॉल का गेम होगा तो क्या होगा, एक टीम हारेगी और एक टीम जीतेगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि जो हारी वाली टीम है उसको आता नहीं है वॉलीबॉल, आता है, बट ये पर चांस उसने जल्दी स्कोर कर लिया और उसने बात नहीं किया। इट्स ओनली चांस कि आप नहीं कर पाए और दूसरा कर पाया, अगली बार वो तो कर लेगा। तो और अगर आप वॉलीबॉल में अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं कि बास्केटबॉल में भी अच्छे हो, बास्केट में कोई और अच्छा हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या आई है, तो आपने उसमें कितने स्किलफुली कर लिया है। बट कीप ऑन ट्राइंग योर स्किल्स, यू आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हर सेक्शन में हर तरह के लोग चाहिए। अगर हमें सिर्फ IAS अफसर बना देंगे आप सबको, तो बाकी काम कौन करेगा? सपोज आपको सब लोग IAS अफसर बन जाते हो, तो आपका बाकी क्या बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? आपका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो हर एक शख्स के लिए एक रोल डिफाइंड होता है सोसाइटी में, तो जो रोल मिलता है ट्राई टू परफॉर्म दैट रोल, तो वही आपकी सक्सेस है। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. My name is Shresh, and I am from class 10th. I like Sanskrit much. क्या केमिस्ट्री? संस्कृत। ओह गुड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी क्लास 10th है, बोर्ड्स है, सो उसमें बोर्ड्स है, अभी क्लास 10th है मेरा, एंड बोर्ड का एग्जाम है। यस सर। उसमें जो है टाइम टेबल जो हम लोग बनाते हैं सर, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे देते हैं, लेकिन जो है सर बहुत सारा चीज़ जो है छूट जाता है, जिसके कारण मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। सो उसको कैसे मैनेजमेंट करें? इसमें देखो, डोंट लीव थिंग्स टू द लास्ट पे नहीं छोड़ो चीज़ों को। अपना नाम बोल दो। Sir. Also the same question. अच्छा। Good evening, sir. Myself Aishwarya. Sir, I want to know that how to gain concentration at the time of study. ओके ओके। ऐसा है ना कि यू डोंट लीव थिंग्स टू द लास्ट मोमेंट। अगर आपका, जैसे मेरा सिविल सर्विस था, समहाउ हमारा एग्ज़ाम 15 सितंबर को था, बट सम ऑफ रेन्स हुई या कुछ और हुआ, तो वो रेन्स के चक्कर में कोई बढ़ा दिया, 6 मंथ्स का पीरियड दे दिया मार्च तक। बट मैंने उसका वेट नहीं किया कि मैं 15 को प्रिपरेशन डेट वो कंप्लीट किया, उसके बाद इमीडिएटली लग गया हम दूसरे। जैसे मेरा अभी जो हमारा एक एग्ज़ाम फिनिश हुआ, 9th का एग्ज़ाम फिनिश हुआ, तो मैं 10th की बुक स्टार्ट कर देता पढ़ना। मैं वेट नहीं करता कि 10th है, जब क्लास लगेगा तब करूँ। तो एडवांस में पढ़ना आपके लिए ईजी होगा। जब एक बार पढ़ लिया होगा, रिविजन कर लिया होगा, उसको मेमोराइज कर लिया होगा, उसको लिख लिया होगा, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज क्विकली इन द लास्ट। और लास्ट में उन चीज़ों को क्विकली आप करो जो आपको कॉन्फिडेंस जहाँ कम है, तो उनको ज़्यादा फोकस करो। वाइल एज यू हैव लर्नड एवरी सब्जेक्ट बिफोर यू हैड टू रीच फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, तो कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। कंसंट्रेशन के साथ साथ देखो, ऐसा हुआ, मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता, मुझे मैथमेटिक्स लगा, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता था, तो मुझे बायोलॉजी अच्छा लगने लगा। जब मुझे बायोलॉजी, तो मेरा क्या मेंटल फैकल्टी बढ़ती गई। जब मेंटल फैकल्टी बढ़ती गई, जब इंजीनियरिंग में मैं गया, तो आई वॉज द टॉप स्कोर इन मैथमेटिक्स। तो वह मेंटल फैकल्टी आपकी डेवलप होती है बाय एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप कोई भी से पढ़ते हो, मेमोराइज करते हो, तो अल्टीमेटली मेंटल फैकल्टी बढ़ती है। जब मेंटल फैकल्टी बढ़ती है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाते हो। तो फिर मैं मैथमेटिक्स भी समझ पा रहा था। आज देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट मुझसे पूछो, संस्कृत पूछोगे, वो पूछोगे, जैसे उपनिषद है वो संस्कृत में लिखी गई होंगी, लिपि उसकी, तो उसको समझने के लिए संस्कृत वाला बंदा और भी अच्छा है। ये संस्कृत कितनी पुरानी लैंग्वेज है, इसके बारे में भी नॉलेज हासिल करना शुरू कर देता हूँ मैं। तो ये तब हुआ जब आपकी मेंटल फैकल्टी ओपन की। यू हैव टू ब्रेक ओपन योर मेंटल फैकल्टी। वो किसी भी सब्जेक्ट से ओपन करो तो बाकी सब्जेक्ट को ईजी हो जाएंगे लर्न करना।
राइट? तो ये है फोकस कंसंट्रेशन का। और ऑक्सीजनेट रखो, ऑक्सीजनेटेड मतलब वाटर पीते रहना थोड़े थोड़े सिप्स में, भरना नहीं है पेट को, 2-2 घूंट पीते रहना। वाइल यू मेमोराइज तो उसको 2-2 घूंट में पढ़ना, और वाटर का गिलास आपके टेबल पे होना चाहिए। एक साइंटिस्ट है जापान का, उसने ये रिसर्च किया है, आप गिलास में वाटर जो होगा, जो कुछ पढ़ोगे, जो कुछ सोचोगे, उस वाटर पे उसका इफेक्ट आता है। सपोज मैथमेटिक्स पढ़ा आपने या जो भी करा, वो वाटर उसका इफेक्ट ले लेता है। द मोमेंट यू ड्रिंक द वाटर, उसका इफेक्ट भी आपके अंदर आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं इसको हम। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअलिटी आल्सो। सो वो जो इफेक्ट आता है, इट विल नेचुरली हेल्प यू इन मेकिंग मोर कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन लेने के साथ साथ आपकी फोकस बढ़ती है, ठीक है। और बैलेंस डाइट, लीफी वेजिटेबल्स वो खाते रहोगे तो आपका बैलेंस डाइट होगा। डोंट ओनली टेक वन टाइप ऑफ, जैसे कोई दाल ही सिर्फ खाते रहते हैं तो लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, तो उनका कोई ना कोई मिनरल कम होता है। तो मेमोरी रिक्वायर सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, ऑल ट्रेस एलिमेंट्स भी जरूरत होते हैं। तो मेमोरी जो आपका ब्रेन है, 25% ऑफ एनर्जी जो खाते हो आप, वो यहाँ कंज्यूम होता है, वाइल इट कंट्रोल ओनली 10% ऑफ, लेस देन 10% टू द होल बॉडी। तो वो जो यहाँ फोकस ज़्यादा है, तो एनर्जी को ज़्यादा देना है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगी, राइट। और एक्सरसाइज, रोज मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ये है कुछ फॉर्मूलाज फॉर मेकिंग योर कंसंट्रेशन। ओके बेटा। Good evening, sir. My name is Prakash Raj. I am from class 10. My favorite subject is political science. I want to ask that what is the role of media in democracy and how to trust correct media website in the current scenario? देखो ऐसा है ना, मीडिया जो है ये जैसे हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस में 4 पिलर हमारे पास है ना। जुडिशरी है हमारा, मीडिया है, पॉलिटिकल लेजिस्लेटर्स हैं और एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में हम जैसे लोग आते हैं, IAS वाले आते हैं और मिनिस्टर्स आते हैं। तो वी एग्जीक्यूट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लेजिस्लेटर वो लॉ बनाता है, और जो जुडिशरी है वो उसको लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्क्रूटनी करती रहती है। तो मीडिया का क्या रोल होता है कि मीडिया इन तीनों चीज़ों को वॉच करके लोगों को अवेयर करता है। अब मीडिया में आजकल क्या हो गया है, जो मुझे समझ आती है ट्रेंड है, एवरीबडी हैज़ टेकन टू दिस मीडिया एज ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ, उसको खुद अपनी नॉलेज बहुत कम रहती है। जो मीडिया में एंकर होते हैं या मीडिया न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, वो नॉलेज कम होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू एनालाइज कि हमें क्या प्रेजेंट करना है, तो वो अपना रोल थोड़ा वीक कर जाते हैं। तो अगेन हमारा एक, जब मीडिया का सब्जेक्ट हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसी तरह अगर मीडिया का कोर्स हम पहले से ही लोगों को सिखाना शुरू करें जर्नलिज्म का, तो हो सकता है उनकी नॉलेज, उनकी बाकी बेस जो है वो अच्छी रहे। मगर मीडिया में लोग जाते हैं जब वो कहीं और बाकी फील्ड को देख के नहीं कर पाते हैं, इवन टीचर भी नहीं बन पाएंगे लास्टली, तो वो फिर अडॉप्ट कर लेते हैं ये चैनल जिसमें उसको फेम मिलता है, इज्जत मिलती है, ये मिलता है। तो एक्चुअली वो किसी का क्वैक होता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, एक क्वैक होते हैं। तो जो वो अनक्वालिफाइड लोग जब मीडिया में आ जाते हैं तो उनकी वजह से ये आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है। मीडिया अल्टीमेटली लोगों को खबर लगती है। आप में IT जो है ना, IT इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द नॉलेज सिस्टम। आप कोई भी न्यूज़ कुछ भी बोलो, बेशक आप टेम्परली उसकी वो बाद में आ जाओगे, अल्टीमेटली आपको वो फैक्चुअल पोजीशन वो सामने आ जाएगी आपको। तो दिस IT हैज़ लेवल्ड द मीडिया रोल। तो मीडिया ऑटोमेटिकली एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ थिंग्स नाउ बिकॉज नॉलेज बैंक काफ़ी स्प्रेड है। और मीडिया के जो लोग हैं वो अपनी आप में ही स्क्रूटनी में आप बार बार देखते नहीं उसको, बोले ये फ्रॉड बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसकी थोड़ी देर चल सकता है, अल्टीमेटली ये पिलर जो है स्ट्रेंथन हो जाता है। दूसरा इसमें क्या विशिएट होता है, अल्टरनेट मोटिव्स आ जाते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए, हम लोग मोटिवेट कर लें उसको, हम किसी मीडिया वाले को ना खबर देना चाहें, या पॉलिटिकल बॉसेज जो होते हैं वो कहीं कहीं अपने फेवर में कर लेते हैं, बट दैट इज़ ओनली टेम्परेरी फेज। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं ना, अल्टीमेटली समुद्र तो बड़ा वास्ट है ना, उसमें कभी कभी आपका विस्फोट भी होते हैं, तो सुनामी आती है, कभी कुछ लहरें आती हैं, तो ये आते रहते हैं, दिस टर्बुलेंट, द नेचर ऑफ द थिंग्स आर लाइक। तो बड़ी नॉलेज जो है इट विल सेटल डाउन, अल्टीमेटली विल बी जितने एजुकेशन सोसाइटी में आएगी उतने अवेयर होंगे, उतना अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अच्छा होता है? डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी हमारे पास भी है। अगर डेमोक्रेसी होती तो मीडिया भी अच्छा होता ना। विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज टेस्टेड इन द हिस्ट्री एज ए गुड गवर्नेंस सिस्टम? मॉडल कौन सा अच्छा लगता है आपको? I believe in dictatorship. That's not a political system. System में what is the best system? Democracy, although is a very good democracy. इसमें दो किस्म की डेमोक्रेसी है ना, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी।
दोनों में क्या है फर्क लगता है आपको? दोनों फर्क यही है कि डेमोक्रेटिक ये जो पार्लियामेंट्री नहीं, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों में क्या है फर्क? डिफरेंस यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जैसे कि अमेरिका सब में चल रहा है, और इंडिया इसी में पिछला रह जा रहा है। बट प्रेसिडेंशियल का सिस्टम जो है इट कैन गो टू ऑटोक्रेसी आल्सो ना। बट वो सिस्टम ज़्यादा आदमी फेस नहीं कर पाते, मतलब ज़्यादा ट्रुथ रहता है उसमें कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म। ओके, डिपेंड। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो यू मस्ट रीड। आपने जूलियस सीजर पढ़ा है? आपने रोमन एम्पायर का राइज एंड फॉल पढ़ा है? राइज एंड फॉल और रोमन एम्पायर यू शुड रीड, राइट। और आपका इंडियन सिविलाइजेशन में जो आए हैं ना राजा ऊपर नीचे सब, इनका सिस्टम पढ़ना चाहिए आपको। और चाइना का सिस्टम पढ़ना चाहिए, हाउ दे। तो 3-4 सिस्टम्स हैं। तो एवरी एरा हैड अ टाइप ऑफ गवर्नेंस। डिपेंड करता है लोगों की वैल्यू सिस्टम कितना चेंज होता रहता है। लोगों का वैल्यू जितना चेंज होता रहेगा उतना ही पॉलिटिकल सिस्टम बदलता रहेगा। तो बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाकई वही होती है जो पूरे कंट्रीब्यूशन से बने। बट कंट्रीब्यूशन तब होगा व्हेन यू हैव अवेयर्ड वोटर्स। अभी हमने इलेक्शन करवाया ना, तो क्या हुआ, लोगों को मालूम नहीं है कि उनका राइट क्या है। जितने वोटर्स अवेयर होंगे उतना पार्लियामेंट सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। जब तक आप पार्लियामेंट सिस्टम को रखोगे बेस्ट सिस्टम को, बट जो चलाने वाले हैं, जो उसको मतलब वोट देने वाले हैं, जब वो अवेयर नहीं होंगे तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वुड नॉट बी बेटर। द बेस्ट सिस्टम पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है, बट इट डिपेंड्स हाउ अवेयर योर वोटर्स आर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट। दिस शुड हैव बीन योर आंसर। थैंक यू सर। ओके। इस विशाल वर्मा फ्रॉम क्लास 11 PCM। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम क्या फेस किए थे? सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत लंबा एग्जॉस्टिव सिलेबस होता है। एंड दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू नो अबाउट एवरी मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ कोई 15 टाइप ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मास्टरी करनी होती है। यू शुड बी मास्टर ऑफ एनालिटिक मैथमेटिक्स, ये मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंडियन स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री। इतना कुछ पढ़ना पड़ता है कि इंसान कहता है कहाँ फंस गया। इतना कुछ पढ़ने के लिए है। फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, वाई चाइना इज प्रोग्रेसिंग, वाई इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग, अब वुमेन राइट क्या होने चाहिए, पार्लियामेंट सिस्टम अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छा है, मतलब इतना नॉलेज आपको देना पड़ता है। ये ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं है। बट आपके पास टाइम जो प्रिपरेशन का होता है 1 ईयर 1.5 साल होता है। अब तो लोगों को तभी 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। जब हमने किया था तब इतना भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं था। बट एनीवे जो क्वांटम ऑफ नॉलेज और उसके ऊपर मास्टरी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नॉलेज बहुत बड़ा है और आपको हर सब्जेक्ट के बारे में यू हैव टू बी एज गुड एज ए टीचर वुड बी। जैसे आपके मैथमेटिक्स टीचर है ना, अगर मैथमेटिक्स लिया तो आपको इससे भी बढ़िया होना। ये दो। Thank you very much. I hope I could be interacting entire night with you. I have no, I don't tire of answering questions. Whatever you ask, I must be having my knowledge on any of the subjects. मुझे क्योंकि जो over the time experience है, मैंने कहा ना, I'm hungry for knowledge. जितनी नॉलेज मुझे मिलेगी, आपसे मिलेगी, इनसे मिलेगी, उनसे मिलेगी, मैं वो ग्रास्प करता जाता हूँ। तो वो ग्रास्प की वजह से क्या होता है, I can then connect these neurons together and put the knowledge in one go. तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ सीखूँ। सब कुछ सीखने के लिए हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ये छोटी ज़िंदगी में आपको जितना टाइम मिलता है, डोंट वेस्ट दिस टाइम। जिसने टाइम वेस्ट किया समझ लो उसने बहुत नुकसान किया। मैं भी नहीं वेस्ट किया। आई ऑल्सो वॉच टीवी, इधर उधर का रील भी देख लेता हूँ, बट वो अब देखता हूँ। जब मेरा कैरियर का वक्त था, जब मैं 8th 9th 10th आपकी जैसा स्टूडेंट था, तब मेरा ये था कि आई वॉज नॉट वेस्टिंग एनी ऑफ माई मिनट और आवर। मेरा मिनट आवर जो है इट वॉज डेडिकेटेड फॉर सीकिंग नॉलेज एंड एक्वायरिंग नॉलेज। उससे क्या हुआ कि जब मेरा कैरियर का वक्त आया, आई वॉज इन अ वेरी गुड स्किल प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड कम्पीट। और अब जब हम कम्पीट होने के बाद ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, नाउ दीज डेज आई कैन वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट वो भी मौका नहीं मिलता है। आई कीप ऑन लर्निंग येलो स्टोन रिवर कोस्ट कैसे चेंज हो गया। तो ये अभी भी नॉलेज का वो ट्यून हो जाता है माइंड आपका। वंस यू आर इन अ लर्निंग मोड, यू रिमेन इन लर्निंग मोड फॉर लाइफ। तो मेरी आपसे जाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, डेवलप द लर्निंग मोड एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग ऑन द लर्निंग मोड एंड कीप हार्नेसिंग योर एनर्जीज टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न। विज्ञान ही
आपकी क्षमता होनी चाहिए और विज्ञान के लिए ही आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। ज़िंदगी का मकसद ही विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान में ही ज़िंदगी है, ये सीख लेना आप हमेशा। थैंक यू। जी जी सर, तो कहते हैं बातचीत करने से ही तत्व का बोध आदमी सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचता है। सच कहूं, जब आप आए तो शुरुआत में जाकर के जो आप हमारे दिमाग में थे, दिल में नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने मोहब्बत से बात की, जिस तरह से इंटरैक्ट करते चले गए, जिस तरह से आपने रूहानी, जिस तरह से आपने हर बात में आपने विज्ञान पढ़ा है, आपने गणित का अध्ययन किया है, लेकिन बात बात में आपने रूहानी तालीम से हमारे छात्रों को हमेशा उसको आपने उपकृत किया है। मैंने देखा है जो आपकी पर्सनैलिटी में जो वो कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं है, इतनी देर में हम लोगों को पता चल गया। आपने जब जो चाहा अपनी मेहनत के बदौलत पाया। जब आप चाहे जो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बने, जब आपने चाहा बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट, एक तरफ जाके बॉटनी एक तरफ हिस्ट्री, आश्चर्य लग रहा था, हम ताज्जुब हो रहा था। मैं यही कहूँगा सर, जो आपके जो वालिद साहब थे अब्दुल करीम साहब, उनको जाके खुदा ने, अल्लाह ने नेमत के रूप में आपको उनके घर में भेजा है। कारण जो ऐसे बच्चे वैसे ही जा कर के नहीं आते हैं। बहुत दिनों तक जब अपनी बेनूरी पे रोती है नरगिस, तब होता है चमन में ऐसा दीदावर पैदा। तो इसके रूप में आप आए हैं। सर आपने जो बात कही, आपकी बातों में उपनिषद का पुट था। पहला ही आपका था जो कि जब हम कमाएंगे इतना कमा लो जिससे हमको काम चलता है, बाकी फिर जाकर के जो है समाज के लिए भी सोचो, उसको हम चैरिटी कर देंगे, दान दे देंगे। सर उपनिषदों में 108 संख्या उपनिषद की है। जी जी जी, उसमें जाकर के पहली जो उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य धनम। ये सर लोगों को कभी, यह पाश्चात्य देशों के लोगों को समझ में बात नहीं आएगी। उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, जो एंजॉय विथ सेक्रीफाइस, ये समझ में बात नहीं आएगी। जो एंजॉय विथ त्याग के द्वारा भोग करो, यह समझ के पड़े की बात है उन लोगों के द्वारा जो त्याग में भी भोग है, त्याग में भी एंजॉयमेंट है, जो आपने जाकर के जो है सो जो बातें आपने कही। सर ये छात्र आपको अनेक तरह से अनेक बातें मतलब जाकर पूछ रहे थे। लगता था जो हो सकता है जो कहीं आपको अब एक इससे जाकर के जो एक बोर्डिंग सिचुएशन ना हो, आप फेडअप ना हो जाएं। लेकिन मैं आपके पेशेंस को दाद देता हूँ। क्या शिक्षकों का पेशेंस होगा। कई बार हम लोग जाकर के पेशेंस लूज कर सकते हैं जब कोई मोनोटोनस टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता हो, लेकिन बहुत ही अपने धैर्य के साथ अपने हर किसी के प्रश्न को बिल्कुल आप जाकर के जो उसको एकदम उसको सम्मान देते हुए, और उसको मैंने देखा हर एक छात्रों के चेहरे से मुझे पता चल रहा था जो बिल्कुल यहाँ से सेटिस्फाइड होकर के जा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है सर। वाकई जो एक शब्द है अपने देश का, अतिथि देवो भव, आज कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं इसके लिए मैं अपने सचिव महोदय श्री राजेश जी का उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। नहीं, जरूरी इसलिए है जो सर वो आप जैसे व्यक्ति को ऐसे वह जा खुद ही ही इज ए वेरी थर्स्टी पर्सन टू नॉलेज, ही हैज़ थर्स्ट। वो खुद एक इंजीनियर है, जैसे आप ही की तरह इंजीनियर रह करके, लेकिन जब आपने चाहा तब आपने स्विच ओवर किया, जहाँ जिस क्षेत्र में आपने स्विच ओवर किया उसी में जाकर के सफलता आपकी कदम चूम ली। तो सर जो कहा गया, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, जो कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, अगर जज्बा हो दिल में कुछ कर दिखाने का, तो वाकई जाकर के उस जज्बा का परिचय आपने दिया है अपनी ज़िंदगी में। जब जो चाहा उसी को आपने जाकर के जो है पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन अंततः एक बात जो हमें जाकर देखने को यह बात मिली है, जो लेबर हैज़ नो ऑप्शन, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। आपने खुद कहा है जो वैसे तो ठीक है 7-8 घंटा से शुरुआत करें, लेकिन जब अंतिम समय हो तो निश्चित बात है उसको वार लेवल पर कोशिश करो। जो सोने का मौका तो ज़िंदगी में बार बार मिलेगा, लेकिन जैसे कुछ करने का मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता है। और अपने 24 घंटे में से 14 से 16 घंटे का समय दे करके उसका सदुपयोग किया, तब आज आप इस मुकाम पर हैं। तो निश्चित बात है हमारे छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, जो कोई चीज़ ऐसे ख्वाब देखने से नहीं मिलता है। अगर आपने ख्वाब देखा है तो अपनी क्षमता भी देखिए, अपना पोटेंशियल भी देखिए, और फिर उसके हिसाब से योजना बना करके उसको जा करके उस योजना को, उस अपने सपने को साकार करने में लग जाइए। कह नहीं सकते हैं सर, जो मैंने एक शुरुआती बात कही, जो हमने दिमाग तक ही आपके लिए जगह सुनिश्चित की थी, लेकिन देखते ही देखते अब कब हम लोगों के दिल में उतर आए
है यह पता ही नहीं चला। बालो वा यदिवा वृद्धो युवा वा गृहमागता तस्य पूजा विधेतव्या सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। अभ्यागत माने होता है अतिथि होता है। अतिथि की जो परिभाषा है नौ तिथिर यस्य असो अतिथि, जिसके आने की तिथि डेट मालूम नहीं हो तो कुछ ऐसा ही सरप्राइज आप जैसे इतने जानकार व्यक्ति, इतने सहृदय व्यक्ति को जाकर के हमारे राजेश सर जो है सो यहाँ पर ला करके आज कुछ ऐसा ही काम किया है जो बिल्कुल कुछ पहले पता नहीं था, एक दिन पहले पता नहीं था। मुश्किल से कुछ घंटे 2-3 घंटे पहले हम लोगों को जानकारी मिली। जो आ रहे हैं यहाँ पर जो है मतलब वह परवेज आलम जी आ रहे हैं, परवेज इकबाल सर आ रहे हैं। लग रहा था ठीक है बहुत IAS ऑफिसर कुछ तो हमारे विद्यालय के भी 10-12 हो चुके हैं अभी तक। एक यह गौरव हम लोगों का प्राप्त है। देखें इनसे क्या हम जान पाते हैं, लेकिन जो आपसे सर जाना, जो आपसे पाया, वाकई जाकर उसे शब्दों में बयां, उसे अल्फाजों में बयां नहीं किया जा सकता है। सर जब मेरा दिल जब वाकई जाकर के जब ऐसे शख्स से कभी मिलता हूँ तो हमारे दिल में जाकर के जाने के समय में एक ही बात उमड़ती है। इस शायरी को कभी कभार मैं रिपीट करता हूँ और आपके लिए भी मेरे दिल से यह तकरीर निकल रही है, यह बात बयां हो रही है। जो आ गए हो प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जाते हो तो आने का वादा करो, जाते हो तो आने का वादा करो। मैं विद्यालय के जोरदार तालियों से करतल ध्वन से सर का स्वागत करें परवेज जी का, जिन्होंने आज की शाम को गुलजार कर दिया अपनी तालीम से, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से। तो सर एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन मैन। वह जो है शिक्षा जो है वह पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन। उसी मैनिफेस्टेशन से चुनाव के समय मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र। तो वह चीज़ है जाकर के शिक्षा जो है सो वो एक ऐसा मैनिफेस्टेशन का काम करता है जो पहले से ही जब हमारे जो सद्गुण हमारे भीतर है, पूर्णता तो है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जो होती है उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो एजुकेशन के बिना संभव नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी प्यारे छात्रों में इतना ही कहना चाहूँगा, जितनी सारी बातें उन्होंने कह दी जो मैथ्स के बारे में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ उन्होंने जाकर के जो बिल्कुल सम्मान की बात की। कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, बात है जो तुम्हें किस सब्जेक्ट का जुनून सवार है, तुम्हें किस सब्जेक्ट से प्यार है। जिस सब्जेक्ट को तुम अपना लो वही सब्जेक्ट तुमको मंजिल तक पहुँचा सकता है, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में उस सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से प्यार हो, लगन हो। जब वो बात होती है तभी जाकर मेहनत की क्षमता जगती है, और जब बिना मेहनत का जीवन में जाकर कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। धीरज जी का हमारे सचिव महोदय उन्हें सम्मानित किया अनुबंध के द्वारा। धीरज जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। ये सामान्य प्रेक्षक और काउंटिंग ऑब्जर्वर दोनों हैं, मतलब जनरल ऑब्जर्वर और काउंटिंग ऑब्जर्वर दोनों हैं, और इनके लाजन अफसर के रूप में एक दूसरा आदमी काम कर रहा है, लेकिन मैं इनको लेकर के आया। अभी वर्तमान में 7 अधिकारी हैं जो IAS हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए, और 2 IRS हैं जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और IPS है, वो पुलिस ऑब्जर्वर है। पूर्णिया जिला में 10 IAS, IPS और IRS यहाँ पर आए हैं चुनाव को मॉनिटर करने के लिए। मेरा जो लाइन अफसर है, मतलब मैं 56 आमों के लिए हूँ, बट सर जो है रुपौली के लिए है 60 AC, 60 रुपौली के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि 7 में से मैं लगातार सबके संपर्क में हूँ पिछले 14 तारीख से, 14 अक्टूबर से। बागडोगरा से सर को लेके आया था, जब मैं अपने 20 अनुगम सर को लेने के लिए गया था तो सर भी वहाँ पर था। पिछले 15 दिन से, लगभग 15-16 दिन से हम लोग लगातार सर के साथ में हैं, लेकिन 10 में से मुझे लगा क्या कि कलर सर को ही हम लेकर के चले अपने विद्या विहार परिवार में, तो शायद कुछ हम लोग सीख पाएंगे इससे और कुछ दे भी पाएंगे आने वाली पीढ़ी को। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 84 बैच में नेत्रहाट विद्यालय गया था। 85 में पहला मेरा फर्स्ट ईयर था। वहाँ पर एक लक्ष्मी सिंह नाम की IAS IP जो कमिश्नर थी छोटा नागपुर की। हम लोग उनको दूर से ही देखे थे, बड़ा ग्लैमरस, मतलब इनका प्रभाव था बहुत जबरदस्त था। उसको देख करके उस समय में पहली बार समझ में आया कि IAS जैसी कोई चीज होती है, और वही चीज आज हमको लगा कि
उस समय हमारी इस तरह से वार्ता नहीं हुई थी, हम लोग दूर से ही देख करके खुश हो गए थे कि एक IAS है और नेतरहाट विद्यालय आई हुई है और कमिश्नर भी। बट इस तरह का जो इंटरेक्शन था वो दौर नहीं था वैसा। आपके जैसे फ्रीलांसिंग क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ आ रहे थे और सबके जवाब दिए जा रहे थे, वैसे समय नहीं थे। और हम लोगों को पूरे 5 वर्षों में ऐसा कोई अवसर नहीं मिला कि कोई एक IAS आए और जो मोटिवेट कर सके हम लोगों को कि हम लोग भी IAS बन सके। तथापि सीनियर हमारे इतने IAS हैं और IPS हैं नेतरहाट विद्यालय के, उनसे मोटिवेट होकर के हम भी बहुत प्रयास किए, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था। बट राज्य सरकार में हम काम कर रहे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। इसी के सबसे प्रथम बैच के हमारे पॉल सर हैं, हमारे गार्जियन के समान हैं। इनका जो दामाद है धनंजय, वो हमारा बैचमेट है। और स्वर्गीय रमेश सर हमारे लिए पिता तुल्य थे, उनका कमी तो बहुत खलता है। बट हमारे बड़े भाई साहब पप्पू भैया और जो छोटे ब्रजेश भाई साहब हैं, इनके दोनों के भ्रातृत्व में हम विद्यालय परिवार को अपना परिवार समझते हुए इसमें जीते भी हैं और मरते भी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कहा जाता है बिना माध्यम की मंजिल नहीं मिलती, तो आज के माध्यम वो है, आज की राह वो आप हैं, जिसके कारण आज हम लोगों को तलब की मुलाकात हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न सिर्फ अपने ओर से विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार और सर का विशेष रूप से आभार।